कठोपनिषद ने उत्तर दिया, जिनकी ऊर्जा अक्षुण्ण, जिनका यश अक्षय, जिनका जीवन अंतहीन, जिनका पराक्रम अपराजेय, जिनकी आस्था अडिग और संकल्प अटल होता है, वो युवा होता है। ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। जय हो भारत के नए खड़ग, जय तरुण देश के सेनानी, जय नई आग, जय नई ज्योति, जय नए लक्ष्य के अभियानी, जय नए लक्ष्य के अभियानी। India, the world's largest democracy, a country which is home to 1.4 billion people, a republic where the constitution continues to remain the guiding light of governance, a diversity that helps us understand differences with sensitivity, a country with the most number of youth between the ages of 18 to 25, which could be an economic boon, and a unity that bridges differences and challenges divisive forces. Today's program has a great importance as we are hosting it during the centennial period of Gokhale Education Society's HPT Arts and RYK Science College from the year 1924 to 2024. A system where the people, their voice and will is fulcrum to governance is democracy. And the tapestry of fabric this multicultural, multilingual nation is, there are many voices to be heard. As participation of common man and organization is an important element of good governance, here comes a mention of programs such as Mock Parliament. Mock Parliament, the idea to hear and encourage the youth to engage with public issues, understand the common man's point of view from their opinion, and to express it in an articulate manner, to develop and enhance decision-making abilities, and most importantly, to make available their views to the policymakers to take them forward. And it's a matter of great pride that the students of our college are here today to keep their views and solutions before you all. And to bless and guide them, we have a panel of erudite leaders present on the dais. I deem it to be my honor to welcome them all. We warmly and cordially welcome our presiding guest, Honorable Sir Dr. M.S. Gosavi, Secretary and Director General of Gokhale Education Society, Nasik. Honorable Dr. Sir Ram Kulkarni, Zonal Secretary for Gokhale Education Society, Nasik, and Principal of BYK Science College, Nasik. Dr. Sir V.N. Suryavanshi, Honorable Principal of HPT Arts and RYK Science College, Vice Principal Dr. Teacher Mrinal Deshpande, Vice Principal Dr. Sapranav Kumar Ratnaparkhi, Head of the Department of Political Science Dr. Sir Prashant Deshpande, Arts Coordinator and the Coordinator for Mock Parliament Program 2022, Sir Haresh Khairnar, Dr. Sir S.S. Ahire, Dr. Ashok Wasave, Dr. Ganesh Giri, all the HODs present here, teachers of senior and junior colleges, various authorities in Gokhale Education Society, the 5 alumni of our prestigious institution, Dr. Sir Prakash Pawar, Vice Principal of Ferguson College, Pune, parents and my dear student friends. I now request our Honorable Principal Sir, Sir V.N. Suryavanshi, to render the welcome address. Namaskar. गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे HPT आर्ट्स आणि RYK सायन्स कॉलेज यांचे पॉलिटिकल सायन्स डिपार्टमेंटने आयोजित केलेल्या या मॉक पार्लमेंट कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी या कार्यक्रमाला लाभलेले प्रमुख पाहुणे आणि भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री माननीय डॉक्टर भारती पवार मॅडम आपल्यामध्ये इथे थोड्या वेळात येणार आहेत. आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी, आमचे सर्वांचे प्रेरणास्थान आदरणीय सर डॉक्टर M.S. गोसावी, या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी उपस्थित असलेले गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे विभागीय सचिव आणि BYK महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर राम कुलकर्णी सर, या कार्यक्रमासाठी मुद्दामून उपस्थित असलेले आमचे पॉलिटिकल सायन्स विभागाचे
माजी विद्यार्थी, त्याच्यामध्ये MSW कॉलेजचे माननीय प्राचार्य देशमुख सर इथे आहेत. त्याचप्रमाणे फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य माननीय डॉक्टर प्रकाश पवार इथे आहेत. आपल्या महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थिनी पॉलिटिकल सायन्स विभागाच्या, परंतु आता IAS झालेल्या माननीय मोनिका पांडे मॅडम इथे आहेत. त्याचप्रमाणे आपल्याच महाविद्यालयाचे अत्यंत नामवंत माजी विद्यार्थी आणि विद्यार्थीप्रिय प्राध्यापक माननीय कुणाल वाघ इथे आहेत. आणि आपल्या महाविद्यालयामध्ये पॉलिटिकल सायन्स MA आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता करता अत्यंत लौकिक प्राप्त खेळाडू म्हणूनही ज्यांचं नाव आहे, ज्यांना शिवछत्रपती अवॉर्ड मिळालेला आहे फेन्सिंगमध्ये, त्या माननीय श्रुती वायदंडे ह्या इथे आहेत. आणि आपल्या परिस्थितीशी संघर्ष करत आणि आपल्या समाजामध्ये प्रथम PhD प्राप्त झालेले आमचे माजी विद्यार्थी माननीय गणेश निंबोडे इथे आहेत. हे सर्व माजी विद्यार्थी आहेत. माझे उपप्राचार्य सहकारी डॉक्टर मिसेस MD देशपांडे, डॉक्टर प्रणवरत्न पारकी सर, प्राध्यापिका मुळे मॅडम, माझे पर्यवेक्षक ज्युनियर कॉलेजचे काळे मॅडम, या कार्यक्रमाचे आयोजक आणि पॉलिटिकल सायन्स विभागाचे विभाग प्रमुख माझे सहकारी डॉक्टर प्रशांत देशपांडे सर, पॉलिटिकल सायन्स विभागातील माझे सर्व प्राध्यापक सहकारी बंधू भगिनी, इथे या कार्यक्रमासाठी मुद्दामून उपस्थित असलेले माझ्या महाविद्यालयातील सिनियर कॉलेजचे आणि ज्युनियर कॉलेजचे विभाग प्रमुख, त्याचप्रमाणे सर्व प्राध्यापक सहकारी बंधू भगिनी, त्याचप्रमाणे इतर महाविद्यालयातून आलेले माझे सर्व प्राध्यापक सहकारी बंधू भगिनी, विद्यार्थी, सर्व काही महाविद्यालयातून वेगवेगळ्या महाविद्यालयातून आलेले आहेत विद्यार्थी बंधू भगिनींनो, माझे सर्व शिक्षकेतर सहकारी बंधू भगिनींनो, HPT आर्ट्स आणि RYK सायन्स महाविद्यालयाच्या वतीनं राज्यशास्त्र विभागाने हा आयोजित केलेला कार्यक्रम आहे. आणि HPT आर्ट्स RYK सायन्स महाविद्यालयाचा हा जो कालखंड आहे हा शतकपूर्तीकडे वाटचाल करणारा कालखंड आहे. 2024 साली HPT आर्ट्स RYK सायन्स महाविद्यालय 100 वर्ष पूर्ण करणार आहेत. आदरणीय सर डॉक्टर MS गोसावी सरांनी आम्हाला एक ऑब्जेक्टिव्ह दिलेला आहे की या 2 वर्षाच्या कालखंडामध्ये आपण जेव्हा महाविद्यालयाचा शतकपूर्ती हा कालखंड आपण पूर्ण करू, तेव्हा आपण आपल्या महाविद्यालयामध्ये 98 वर्षाच्या 100 वर्षाच्या ह्या दैदिप्यमान अशा प्रकारच्या कालखंडामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना घडवलं, ज्या विद्यार्थ्यांना इथनं शिक्षण घेण्याची संधी दिली आणि त्यांना आपलं व्यक्तिमत्व विकसित करण्याची आपण इथे प्लॅटफॉर्म आणि व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं, अशा ह्या माजी विद्यार्थ्यांना इथे बोलवायचं, त्यांना त्यांचे प्रतिनिधी काही बोलवायचे. आपण सर्व महाविद्यालयातील सर्व माजी विद्यार्थ्यांना बोलवू शकणार नाही, परंतु त्यांचे प्रतिनिधी इथे बोलवायचे आणि त्यांचा आदर सन्मान करायचा. त्याचप्रमाणे विद्यमान जे विद्यार्थी आहेत, आत्ता आमच्या महाविद्यालयामध्ये जे विद्यार्थी आहेत, त्यांच्याशी त्यांचा संवाद घडवून आणायचा. आणि ज्याप्रमाणे ह्या सर्व माजी विद्यार्थ्यांनी आपलं स्वतःचं करिअर घडवलं, आपल्या स्वतःचं व्यक्तिमत्व घडवलं, त्याचप्रमाणेची प्रेरणा आत्ताच्या आमच्या ह्या विद्यार्थ्यांना त्यातनं मिळावी. आणि आम्ही जे उपक्रम या विद्यार्थ्यांसाठी घेतले होते, त्याच उपक्रमाच्या माध्यमातून तेच उपक्रम आपण ह्या सर्व ऑडियन्सला, आम्ही उपस्थित असलेल्या सर्व प्रेक्षकांपर्यंत सादर करावेत, अशा प्रकारचा हा उपक्रम आम्ही आमच्या सरांच्या मार्गदर्शनामधनं घेतलेला आहे. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून पॉलिटिकल सायन्स या विभागाने हा उपक्रम इथे आज आयोजित केलेला आहे. आमच्या महाविद्यालयातील प्रत्येक विभाग, जवळजवळ 21 विभाग या महाविद्यालयामध्ये आहे आणि सर्वच्या सर्व विभागांना एका वर्षात संधी मिळणार नाही, कारण आम्ही प्रत्येक महिन्याला एक असा उपक्रम करायचा आहे आणि प्रत्येक विभागाला अशा प्रकारचा एक उपक्रम आम्ही विभागून दिलेला आहे किंवा त्यांना अलॉट केलेला आहे आणि त्या विभागाने तो आयोजित करायचा. त्यामुळे प्रत्येक विभाग असा हा आपला एक उपक्रम दर महिन्याला आयोजित करणार आहे आणि त्या माध्यमामधनं आम्ही आमच्या महाविद्यालयाचे जे काही आतापर्यंत मिळालेलं यश असेल, आमचे माजी विद्यार्थी असेल, ते समाजासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. प्रत्येक महाविद्यालयाचं हे कर्तव्य असतं किंवा मी म्हणेल की ते त्याचं कामच आहे की विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक जे काही अभ्यासक्रम असतील त्या अभ्यासक्रमापुरतं मर्यादित न ठेवता
विद्यापीठाने काहीतरी नेमून दिलेला एखादा अभ्यासक्रम आहेत, परंतु त्याचबरोबर या विद्यार्थ्याला स्वतःचा व्यक्तिमत्व विकसित करण्यासाठी, वेगवेगळे पैलू त्याचे विकसित करण्यासाठी विविध अशा प्रकारच्या उपक्रमांचं आयोजन करावं आणि त्यातनं मग त्या विद्यार्थ्यांचं अत्यंत मी म्हणेल की प्रभावी असं वक्तृत्व तयार व्हावं. त्यासाठी अनेक स्पर्धा असतात. त्या विद्यार्थ्याचं नेतृत्व कौशल्य सामर्थ्य संपन्न व्हावं त्यासाठी विविध उपक्रम असतात. एखाद्या विद्यार्थ्यामध्ये शास्त्रीय म्हणजे शास्त्रज्ञ होण्याचे कौशल्य असतात, त्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम या महाविद्यालयाने आयोजित करावे. एखाद्या विद्यार्थ्याला असं वाटलं की मी राजकीय नेतृत्व चांगलं करू शकतो आणि माझी स्वतःची एक अशी इच्छा आहे की मी भारताच्या संसदेमध्ये सुद्धा जाऊन स्वतःचं एक वाक्पटुत्व हे दाखवू शकतो आणि त्याचा अत्यंत चांगला प्रभावी वापर करू शकतो, त्याच्यासाठी सुद्धा एक अशा प्रकारची जी स्पर्धा आहे किंवा उपक्रम आहे हा राज्यशास्त्र विभागाने खरं तर विकसित केलेला आहे. म्हणजे महाविद्यालयाने अशा प्रकारचे उपक्रम घेण्याचा हा काम आहेच, परंतु त्याचप्रमाणे प्रत्येक विभाग आपापल्या विषयाशी निगडीत अशा प्रकारचे विविध उपक्रम आयोजित करत असतं आणि राज्यशास्त्र विभागाने असा हा उपक्रम जो मी असं नाविन्यपूर्ण असा आहे असं मला वाटतं तो विकसित केलेला आहे. आणि याच्यामध्ये एक मॉक पार्लमेंट आपण हे विद्यार्थ्यांना बघू शकता. जवळपास आम्ही 3-4 वर्ष झाले हा उपक्रम आयोजित करत असतो आणि या विद्यार्थ्यांना त्याची संधी मिळणार आहे आणि आपल्यासमोर ते प्रात्यक्षिकच सादर करणार आहेत. त्यातनं ह्या विद्यार्थ्यांनी किती तयारी केलेली आहे आणि किती चांगल्या क्षमतेचे हे विद्यार्थी आहेत, उत्तम कौशल्य असलेले हे विद्यार्थी आहेत, त्यांच्याकडे भाषेवरती म्हणजे त्यांचं प्रभुत्व आहे, त्याचप्रमाणे त्यांच्या वाक्पटुत्वावरती सुद्धा त्यांचं प्रभाव आहे, प्रभावी आहे, हे आपल्याला यातनं दिसून येईल. आणि अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. राज्यशास्त्र विभागाने असेही उपक्रम आयोजित करत असताना विद्यार्थ्यांना अनेक गोष्टीमध्ये पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणजे विधानसभेचं अधिवेशन चालू असताना त्या विद्यार्थ्यांना भेटी घडवून आणणं, त्या अधिवेशनाचं ते कसं ॲक्च्युअली होतं आहे, म्हणजे ज्याला रिअल अधिवेशन कसं असतं आणि कशाप्रकारे प्रश्न मांडले जातात, कसे त्या ठिकाणी कन्व्हिन्सिंग असे मुद्दे मांडले जातात, त्याचं त्यांनी दर्शन घडवून आणलं. त्याचप्रमाणे संसदेची सुद्धा या विद्यार्थ्यांना त्यांनी हे घडवून आणलेली आहे, भेट घडवून आणलेली आहे आणि आपल्या ह्या विद्यार्थ्यांना विकसित करण्याचं काम केलं आहे. नेटसेट पास झालेले अनेक विद्यार्थी आहेत. म्हणजे मला अभिमान वाटतो की ह्या विभागामधनं जवळजवळ 32 विद्यार्थी नेटसेट पास झालेले आहेत आणि जे विद्यार्थ्यांनी आत्ता आपल्या जीवनामध्ये यश मिळवलं आहे ते आपल्यासमोर त्याचे प्रतिनिधी हजर आहेतच. अशा प्रकारचं हे अत्यंत उत्तम काम हा विभाग आज करतो आहे आणि महाविद्यालयाला निश्चितपणे या सर्व विभागांचा ज्याप्रमाणे आम्हाला अभिमान आहे त्याचप्रमाणे राज्यशास्त्र विभागाचा सुद्धा अत्यंत अभिमान आहे. त्या विभागातील माझे विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रशांत देशपांडे आणि त्या विभागातील माझे सर्व प्राध्यापक सहकारी, त्याच्यामध्ये डॉक्टर SS अहिरे आहेत, डॉक्टर वसावे आहेत, डॉक्टर गिरी आहेत, प्राध्यापक खैरनार आहेत, या सर्वांचं मी अत्यंत मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि अत्यंत चांगला कार्यक्रम आपल्याला इथे बघायला मिळणार आहे. इथे उपस्थित असलेले माझे माजी विद्यार्थी आहेत, आता खरं तर ते खूप उच्च पदस्थ आहेत, त्यांना असं बोलणंही कदाचित मला शिष्टाचाराला धरून होणार नाही, पण आमच्या ह्या माजी विद्यार्थ्यांचंही आपल्या सर्व विभागांच्या वतीनं आपल्या महाविद्यालयाच्या वतीनं अत्यंत मनपूर्वक इथे स्वागत करतो. आपलं सर्वांचं इथे आपण इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित झालेलं आहात, आपल्या सर्वांचं अत्यंत मनपूर्वक स्वागत करतो. पाहुण्यांचं इथे स्वागत करतो. सरांच्या ह्या प्रेरणेमुळे खरं तर आम्हाला हे कार्यक्रम घेण्याची म्हणजे मार्गदर्शनामुळे आम्हाला ही प्रेरणा मिळते आणि सर आमच्या पाठीमागे सहज नेहमीच उभे असतात. मी आदरणीय सर डॉक्टर MS गोसावी, आदरणीय डॉक्टर राम कुलकर्णी सर आणि या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या ज्या आपल्यामध्ये जॉईन होतील त्यांचं आपल्या सर्वांच्या वतीनं, महाविद्यालयाच्या वतीनं, गोखले यशवंत सोसायटीच्या वतीनं अत्यंत मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आपली रजा घेतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir. The Dalai Lama has said, and I quote, "The roots of all goodness lie in the soil of appreciation. We truly appreciate all our dignitaries seated on the days and off the days for making time from their busy schedules for our program and also gracing it with their august presence. We will now have the felicitation ceremony. May I please request Honorable Principal Sir Suryavanshi to felicitate and welcome Sir Dr. MS Gosavi with a shawl, memento and a bouquet. May we have a huge round of applause, ladies and gentlemen.
Thank you, sir. I now request Sir Harish Kharina to felicitate and welcome Dr. Sir Ram Kulkarni with a memento and bouquet. I now request Dr. Sir Sanjay Aire to kindly felicitate our principal, Honorable Sir Dr. V. N. Suryavanshi. I now request Dr. Sir Ashok Wasawe to felicitate our Honorable Vice Principal, Dr. Sir Pranav Kumar Ratnaparkhi. The former US President, His Excellency John F. Kennedy, had said, "I think the success of any educational institution can be measured by the contribution the alumni make to our national life." And I think these words of the former president are so apt, as even Gokhale Education Society has been in the forefront of service to our motherland by making the students citizens who lead their hand in nation building. And we are very happy that 5 of our alumni are present here today and who are giving their best in their respective fields. May I please request Honorable Secretary and Director General of Gokhale Education Society, Sir Dr. M.S. Gasavi, to felicitate these 5 alumni of our prestigious institution. Starting with Professor Sir Kunal Wagh of the 1993 batch from the political field. Ladies and gentlemen, Sir has to his credit of becoming corporator for Nasik Municipal Corporation in very young age. He is also currently serving as the head of Department for Political Science at Panchwati College, Nasik. Principal Dr. Vilas Deshmukh of the 1999 batch from the field of social sector. Sir completed his PhD in 2018 in social work. He has given his service as a counselor in AIDS prevention intervention project of Indian of Medical Association Nasik, and is working as a principal at MVVP Society Social Work College, Nasik. Madam Shruti Vaidande Kadam of the 2006 batch from the field of sports. Madam has been awarded and felicitated with the Gaurav Stri Shaktisa Award on the occasion of Women's Day in the field of sports on 8 March 2013 by the then Chief Minister of Maharashtra, Shri Prithviraj Chauhanji, and the Minister of Women and Child Development. Madam is also recipient of the Shiv Chhatrapati Sports Award and the Best Player of State for Fencing in 2004 and 5 by the then Chief Minister of Maharashtra, Shri Vilasrao Deshmukh, and Minister of Sports and Youth Welfare. Dr. Ganesh Limboe of the 2004 and 6 batch from the field of education. Sir is the first person from his community to receive the honorary PhD degree in Maharashtra and is currently serving as head of Department of Political Science at MVVP Society's Arts Science Commerce College, Taharabad, Nasik. Alumna Madam Monica Pandey of the 2007 and 8 batch from the political field. Madam cracked the UPSC Civil Services examination in 2012. Madam is currently serving as Deputy Commissioner at the Income Tax Department in Mumbai, and she will be promoted as a Joint Commissioner in December 2022. On the auspicious occasion of Gita Jayanti, the Sanskritik Vistarak Sangha Mumbai organized an elocution competition, and Madam stood first in Nasik in that competition. She also stood first in the Department of Political Science. I request Principal Sir V. N. Suryavanshi to felicitate and welcome Dr. Prakash Pawar, Vice Principal, Ferguson College. गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा। भारतीय इतिहास के लिए कोई नया शब्द नहीं। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, अथर्ववेद और पौराणिक ग्रंथों में भी गणतंत्र का वर्णन है।
बौद्ध काल में भी कई चर्चित गणराज्य थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्रों में भी गणतंत्र का वर्णन है। हर भारतीय के रगों में सदियों से बह रही गणतंत्र प्रणाली को आज़ादी के बाद एक बार फिर से जीवंत कर हमारी नीति निर्धारकों ने गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा पहला गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया और तभी से यात्रा इसी तरह चली आ रही है। भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्र की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखे थे। गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था। उस समय से ही इनमें खुद के लिए अधिकारों की ख्वाहिश थी। आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सके, इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है। और इस सरकार को चुनती है भारत की जनता, जो हमारे लोकतंत्र की शक्ति है। यदि लोकतंत्र की बात करें तो इसका अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। भारत की जनता हर 5 वर्ष देश की बागडोर एक सरकार के हाथों सौंपती है। ये सरकार भविष्य में भारत और भारत का भविष्य तय करती है। भारतीय गणतंत्र का केंद्र हमारी संसद माननीय राष्ट्रपति जी और दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। माननीय राष्ट्रपति जी के पास संसद की किसी भी सदन के बैठक को बुलाने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान प्रभावी हुआ और वर्ष 1951 और 52 के दौरान नए संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव हुआ और अप्रैल 1952 में प्रथम निर्वाचित संसद का गठन हुआ। संसद में हमारी चुनी सरकार देश के विकास के लिए अलग अलग निर्णय लेती है और देश के चौतरफा प्रगति के लिए अलग अलग विधायकों को पारित करती है। हमारे आम जनमानस को हमारी संसदीय कार्य पद्धति के बारे में ज्ञात हो, इसके लिए आज हमारे विद्यार्थी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं अभिरूप संसद। तो आइए देखते हैं लोकसभा चेंबर में इस वक्त इस प्रजा विधेयक पर क्या चर्चा हो रही है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, Let the proceeding of the House begin. Question R. Question number 21, Ms. Renuka Shrimanwar. Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, the recent national education policy highlighted the important role of teachers in imparting quality education. However, the teachers themselves need to be prepared to ensure this. For this, the government has taken a timely step regarding this by proposing an all-India level performance test for school teachers. I would like to seek clarification regarding this examination from respected minister. Thank you.
Honorable Speaker, sir, I am happy that the honorable member raised this question in our parliament. We in the government consider that this matter is of most important, and so fittingly it has been an agenda for an considerable amount of time. So it won't be wrong to say that India still lack a good work culture. People often work less hard. They invest little in maintaining and improving their skill. This result in decrease in imagination and performance leading to poor result. As vehicles, machines need time-to-time servicing and maintenance to be in a perfect working condition. Teachers also needs to remain at their best to impart quality education. In this regard, government is planning to introduce performance maintenance and improvement tests, that is PMIT, at all India level for all teachers working in government and government aided school. So, I would like to highlight some main points of this exam. The core aim of this exam is to ensure that teachers' teaching skills and knowledge are at optimum level and best teaching standard are being followed. The test will be compulsory. It will be conducted starting from academic year 2023 to 24 with regular intervals of 3 years. The syllabus of this exam will be decided in due time by the NCERT in accordance with NCF. Minimum percentage of 50% will be required to pass this exam. There will be no rank or distinction system. Exam will be of qualifying nature. Failing the exam for 2 times will be result 1/4 reduction in total monthly salary. Further details will be made available on NCERT website within 1 month. Thank you, Speaker Madam. Thank you, Speaker Sir. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय. केवळ आर्थिक विकासच नव्हे तर शहराच्या पर्यावरणीय आरोग्यासाठीही सार्वजनिक वाहतूक किती कार्यक्षम ठरू शकते हे आपण सर्वांना माहीत आहे. नाशिकची प्रतिनिधी म्हणून मला नाशिकच्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या कार्यक्षमतेबद्दल चिंता वाटते. कारण AQI मूल्य वाढत आहे, म्हणजे हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत आहे. माझा प्रश्न माननीय परिवहन मंत्री यांना असा आहे की मेट्रो नियोची मंजुरी 2019 पासून मंत्रिमंडळासमोर का प्रलंबित आहे? धन्यवाद. मंत्रीजी. धन्यवाद अध्यक्षजी. ज्या प्रकारे आमच्या विरोधक ताईंनी त्यांच्या मतदारसंघातील वायू गुणवत्ता व दळणवळण संबंधित प्रश्न विचारला, त्या संदर्भात मी काही मुद्दे मांडू इच्छितो. प्रथम, निओ मेट्रो व मेट्रो निओ ही एक नाविन्यपूर्ण परिवहन व्यवस्था आहे, जिचा भारतातील सर्वप्रथम प्रयोग नाशिक येथे होणार असून ही देशातील अशी पहिलीच सुविधा आहे जी मेट्रो उपलब्ध करून देणार आहे. आम्ही सध्या याच्या अंमलबजावणी संदर्भात सावधानी बाळगत आहोत, कारण त्यास भारत सरकार एक विफल प्रयोग ठरू देणार नाही. आम्ही सध्या या प्रकल्पाच्या तांत्रिक बाजू, जिओ मॅपिंग व अन्य काही छोट्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करत आहोत, कारण त्याच कारणामुळे या प्रकल्पाला विलंब होत आहे. त्याचप्रकारे मी सांगू इच्छितो की निओ मेट्रो हा एकच सुवर्ण पर्याय नसून भारत सरकारच्या साहाय्याने नाशिक महानगरपालिकेने CNG बसेसची सुविधासुद्धा उपलब्ध करून दिलेली आहे, ज्यांनी डिझेल बसेसची जागा घेतलेली आहे. आम्ही इथेच थांबणार नाही, तर आगामी वर्षात बसेससुद्धा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देणार आहोत. नाशिकच्या वायू गुणवत्तेबद्दल बोलायचं म्हटलं तर मी घसरत्या AQI विषयी चिंता व्यक्त करतो, परंतु नाशिकची वायू गुणवत्ता इतर शहरांच्या वायू गुणवत्तेच्या तुलनेत फार उत्तम आहे व नाशिक स्वच्छ वायुमानाच्या शहरांपैकी एक आहे. आणि भारत सरकारच्या नेतृत्वात आणि भारत सरकारच्या परिवहन व्यवस्थांमुळे नाशिकची वायू गुणवत्ता व दळणवळण उत्कृष्ट असेल यात शंकाच नाही. धन्यवाद. Question number 23, Miss Umama Bagwala. ધન્યવાદ અધ્યક્ષ મહોદય. સ્પીકર સાહેબા, હું તમારા દ્વારા સરકારને પૂછવા માંગુ છું કે આપણા દક્ષિણ ગુજરાતમાં આદિવાસી સમુદાયમાં ટેકનોલોજીના વિકાસ વિશે તમારું શું માનવું છે અને એના શિક્ષણ અને ટેકનોલોજીને આગળ વધારવા માટે સરકારે યોજનાઓ શું બનાવી છે એમ સમજાવી શકો છો કે આ કેન્દ્ર સરકાર
કે આ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રસ્તાવિત પાર તાપી નર્મદા રિવર લિંકિંગ પ્રોજેક્ટનું કામ આવ્યું ક્યાંથી છે? સ્થાનિક આદિવાસી સમાજના આ પ્રોજેક્ટના જોરદાર વિરોધ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારની ભૂમિકા શું છે? આદિવાસીઓ અને સ્થાનિક લોકો માટે આ પ્રોજેક્ટના ફાયદાઓ શું છે? આભાર. माननीय मंत्री जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं माननीय सांसद को बताना चाहती हूँ कि जनजाति समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ने के लिए सरकार का प्रयास जारी है और उसके परिणाम भी देश के सामने आए हुए हैं. कोरोना जैसे महामारी के चलते 2021 में हुए शिक्षण सर्वेक्षण के आंकड़े मैंने सभा पटल पर रखे हैं और आप तक पहुंचाए हैं. सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्तरों पर प्रयास जारी है. केंद्र सरकार की प्रयासों से गुजरात के जनजाति बहुल इलाकों में करीब 36 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, 12 शेड्यूल एरिया मॉडल स्कूल और 13 जिलों में गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूलों की स्थापना की गई है. और ये बताने में मुझे खुशी हो रही है महोदय कि आज तक किए हुए सभी प्रयासों की वजह से और हमारे जनजाति भाई बहनों की शिक्षा के प्रति इच्छा शक्ति के आधार पर गुजरात के जनजाति बहुल इलाकों का शिक्षा स्तर 75% से अधिक पाया गया है. और जहां तक पार तापी नर्मदा रिवर लिंक परियोजना की बात है तो केंद्र सरकार की भूमिका स्पष्ट है. इस परियोजना से गुजरात राज्य को ही लाभ होगा. पार तापी नर्मदा परियोजना से पश्चिमी धार के जल अधिशेष क्षेत्रों से सौराष्ट्र और कच्छ यानी गुजरात के पानी की कमी होने वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करती है. यह परियोजना केंद्र के नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य परियोजना के रूप से जाना जाता है, उसी के आधार पर काम करेगा, जिसका एकमात्र लक्ष्य है सुजल एवं सुफल भारत. इस रिवर लिंक परियोजना के इलाकों में जिन आदिवासियों को विस्थापित किया गया तो उनको वहां की राज्य सरकार के विशेष योजनाओं का लाभ मिलेगा. भविष्य में पानी की समस्या ना हो इसीलिए ये परियोजना की गई है. इसका प्रभाव आज भले ही कम हो लेकिन भविष्य में यह परियोजना एक वरदान साबित होगी, इसमें कोई शंका नहीं. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. Question number 24, Miss रेणुका श्रीमनवा. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय. महोदय, हाल ही में सरकार ने एक अग्निपथ नाम की स्कीम लाई जिसके अंतर्गत भारतीय युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी दी जा रही है. तो मैं सरकार को याद दिलाना चाहूँगी कि उन भारतीय सेना कोई देश बेच खाने वालों की जागीर नहीं. सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले सेवा, यह मनाने वाले अपने देश के लिए समर्पित करने वाले देश का जिम्मा उठाते हैं. तो उन्हें ये सरकार क्या जवाब देगी? और जब वे 4 साल की नौकरी खत्म होगी तब क्या? सरकार ने किसी भी तरह का पेंशन का प्रावधान नहीं रखा है, तो उनके और उनके परिवार का क्या होगा? और रही बात सरकार की यह कहने की कि वे जवान प्रशिक्षित होंगे और स्किल इंडिया के अंतर्गत वे नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहूँगी कि उनकी ट्रेनिंग युद्ध और देश की सुरक्षा के लिए हुई होगी, ना कि व्यवसाय के लिए. और अगर उन्हें व्यवसाय ही करना होता तो वे सेना में प्रवेश नहीं करती. मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि कृपया देश के युवा और देश के साथ खिलवाड़ करना बंद करें. धन्यवाद. माननीय मंत्री जी. धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी. हमारे सांसद ने देश के सुरक्षा बलों में लाई गई अग्निपथ योजना के बारे में कई सवाल उपस्थित किए हैं. उनके सवालों का जवाब एवं विश्वास दिलाने का प्रयास करूंगी. सभी अग्निवीरों का चयन ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अनुसार होगा, जिससे सभी वर्गों का देश सेवा में योगदान रहेगा. इन्हें 30,000 स्टार्टिंग पेमेंट से 40,000 रुपये हर महीने की सैलरी का प्रावधान होगा, जिससे उस युवा जीवन की आर्थिक सुरक्षा का विचार किया है. महोदय, ये योजना सिर्फ 17.5 से 21 आयु के युवाओं के लिए है. जिनको ऐसा लगता है कि आगे जाकर यही युवा बेरोजगार हो जाएंगे,
तो उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि सर्विस पूरी होने के बाद उनके हाथों में 11 से 12 लाख रुपए सेवा निधि के तौर पर उपलब्ध रहेंगे और आयु होगी सिर्फ 21 साल। और रही बात परमानेंट नौकरी की, तो इन युवाओं को अपने पसंद के अनुसार देश की सुरक्षा सेवा में कुल 80 से अधिक सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने का अवसर है अध्यक्ष जी। सभी डिपार्टमेंट की लिस्ट रक्षा मंत्रालय की अधिकृत वेबसाइट www.ministryoфdefense.gov.in पर उपलब्ध है। इसका विरोध करने वाले अगर इस स्कीम को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो सभी समस्याएं दूर होंगी अध्यक्ष जी। धन्यवाद। Okay, the question hour is over. General Secretary message. Honorable Speaker, sir, I have received a notice from Ministry of Home Affairs to lay down the Population Regulation Act and Janasankhya Avaradhak, that is the Praja 2022, for the second reading, and also lay down the report of Standard Committee on the same, which is submitted to House on 3rd of June 2022. माननीय गृह मंत्री जी, विधेयक को अनुभाग खंड चर्चा के लिए प्रस्ताव करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं सभा पटल पर पॉपुलेशन रेगुलेशन एक्ट एंड जनसंख्या अवरोधक यानी प्रजा 2022 को अनुभाग खंड चर्चा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। The question is that motion to discuss clause by clause Population Regulation Act and Janasankhya Avarodhaka Praja 2022 shall be passed. Those who are in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I assume the result of the vote is in the favor of the motion. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंगारू क्लोजर को पारित करने का प्रस्ताव करता हूँ और विधेयक के सिर्फ चैप्टर 2, 3, 4 और 5 के अनुभाग पर चर्चा करने का प्रस्ताव करता हूँ। The question is that the kangaroo motion to discuss only chapter 2, 3, 4 and 5 of the bill shall be passed. Those who are in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I assume the result of the vote is in the favor of the motion. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. The House will proceed with further consideration of bill. Now I have before me a bill for discussion and remarks and also a list of members who wish to speak on the same. Mr. Prashant Shikre. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं इस विधेयक की संवैधानिकता और आवश्यकता पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं माननीय गृह मंत्री जी को पूछना चाहूँगा, क्या सचमुच जनसंख्या नियमन और नियंत्रण समय की आवश्यकता है? मैं मंत्री जी को पूछना चाहूँगा कि वो 4 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए इस आर्थिक सर्वेक्षण के चैप्टर नंबर 7 इंडियाज डेमोग्राफी एट 2040 की रिपोर्ट को अच्छे से पढ़े। केवल मंत्री जी नहीं, सदन के हर एक सदस्य को समझना होगा कि आज की भारत की परिवार नियोजन की क्या वर्तमान स्थिति है। और अध्यक्ष जी, मैं आपको आज ही स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि भारत पूरे विश्व में परिवार नियोजन की एक सफलतापूर्वक कहानी है, और तो और वो भी सभी लोकतांत्रिक माध्यमों के साथ। हमारी सरकार का परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1967 में ही व्यवस्थित और संगठनात्मक रूप से शुरू हुआ, जब उस वक्त के पीएम मैडम ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित जनसांख्यिकी डॉक्टर सीतापति चंद्रशेखर जी की नियुक्ति की। वे भारत में परिवार नियोजन के पहले मंत्री थे। उन्हें उस वक्त जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी वो जनता के भले के लिए, देश के भले के लिए रेड इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसे विचार लेकर आए। हम दो हमारे दो जैसे विचार लेकर आए, निरोध और हिंदुस्तान लेटेक्स जैसे विचार लेकर आए, और इन सभी को सही ढंग से इंप्लीमेंट भी किया गया। इसके बारे में हमारी वर्तमान सरकार अच्छी तरह से जानती होगी। आज अमेरिका जैसे प्रगत देशों में अबॉर्शन पर एक मत नहीं है, वहीं पर हमारी सरकार ने 1971 में ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जैसे महत्वपूर्ण कायदे पारित किए हैं। हाँ, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की गई थी।
और आज की वर्तमान स्थिति क्या है अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। केरल 1988 में ही फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट को प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका था। तमिलनाडु 1993 में दूसरा बना, 2000 में अविभाजित आंध्र प्रदेश और उसके तुरंत बाद ही कर्नाटका। इसे प्राप्त करने के लिए अभी केवल 5 राज्य शेष है, जिनमें झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वे 2025 तक और बिहार 2028 तक फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट को प्राप्त कर चुका होगा। इन सभी शानदार आंकड़ों के बाद भी इस सरकार को प्रजा विधेयक क्यों लाने की जरूरत आन पड़ी, मुझे कुछ समझ नहीं आता। यह हमारी पूर्व सरकार के ही बोए गए बीज है सरकार मंत्री जी, कि आज इन शानदार आंकड़ों के फल आपको देखने को मिल रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। अध्यक्ष जी, यह हमें क्या सूचित करता है? सरकार इसे जानते हुए भी फिर भी कि भारत, इस रिपोर्ट हमें सूचित करते हैं कि यह भारत पहले से ही फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट को प्राप्त कर चुका है। जो लोग नहीं जानते फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट के बारे में, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यह फ्यूचर की फर्टिलिटी यानी उर्वरता का संकेत होता है। लगभग अगली 2 पीढ़ियां यानी 50 वर्ष जनसंख्या स्थिर बनी रहती है, यहां तक कि आबादी में गिरावट भी दिखाती है। अब मंत्री जी इस पर चर्चा चाहते हैं, तो चर्चा करने के लिए इसमें कई खामियां हैं, जैसे कि संवैधानिक खामियां। जी सर, सरकार ये तक भूल गई है ये केवल अभी तक बिल है और संसद के दोनों सदनों के पारित करने के बाद ही ये एक परिपूर्ण एक्ट बनेगा। You only have 1 minute, Prashant. Please conclude. सर, मैं 1 मिनट में क्या ही बोल पाऊंगा? This is the reason I did not speak in the last session. Whatever I want to speak, the way I want to speak cannot be concluded in minutes, sir. So I absolutely protest and will not speak in the important topic like constitutionality in this session, sir. This is not correct. इससे पहले भी 4 मिनट मिलने के बावजूद लोग 8-8 मिनट बोल चुके हैं। इन्हें बोलने देना चाहिए महोदय। किसको कितना अधिकार किसको कितना समय देना है, ये मेरा अधिकार है। माननीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले संसदीय सत्र में मैंने जो प्रजा विधेयक संसद में पेश किया था, उस पर हमारे विपक्ष के नेता ने की हुई टिप्पणियों का समाधान करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ। इन्होंने कहा कि यह विधेयक की जरूरत क्या है, तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष को पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी, 2023 तक पूरे विश्व में लोक संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण विषय है या नहीं? अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि उस समय सभी कदम लोकतांत्रिक तरीके से उठाए गए थे 75 में, तो मुझे तो लगता है ये जानबूझकर एक बात यहां पर रखना भूल गए कि उसी वक्त फोर्स स्टरिलाइजेशन नाम का काला कैंपेन चलाया गया था अध्यक्ष जी, जिसके असफलता के आंकड़े सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, हर बार की तरह इन्होंने आज भी इस विधेयक की संवैधानिकता पर सवाल उठाए। मैं सबके सामने एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विधेयक पूरी तरह से संवैधानिक है और अगर इसमें कुछ संवैधानिक त्रुटियां होगी उसका विचार माननीय न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट करेगी। हमने यह महत्व सुन लीजिए मंत्री जी, नेताजी, आप सुन आपको लीजिए। बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अध्यक्ष जी, हमने यह विधेयक यहाँ पर लाया है, यह महत्वपूर्ण विषय सदन में उपस्थित किया है। आप इसके मूल विषय पर चर्चा कीजिए, न कि सदन का ध्यान भटकाए। समय तो दिया अध्यक्ष जी, इन्होंने TFR की डेफिनेशन बताई, इन्होंने TFR की डेफिनेशन बताई, तो मैं देश के भविष्य के लिए एक बात बताना चाहूंगा। TFR की परिभाषा हर किसी देश में अपने परंपरा के अनुसार बनाई जाती है, क्योंकि इसमें जन्म देने वाली माता का नाम स्पेसिफाई किया जाता है, माता को स्पेसिफाई किया जाता है। इसमें भी हिंदुस्तान में बदल की आवश्यकता है। इन्होंने वोट पॉलिटिक्स वगैरह की बात की, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि कई सालों से जनता की सेवा में पूरे बहुमत के साथ और पूरे जनादेश के साथ बैठे हुए लोगों को वोट पॉलिटिक्स की चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। और रह गई बात उस समय मतलब 75 में बोए गए बीजों की, तो अध्यक्ष जी, वो बीज अगर इतने गुणकारी होते तो जनता आपको वहां बैठने का सौभाग्य ही नहीं देती। मैंने सरकार की तरफ से हमने यह विधेयक लाया है, आप इस पर विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। आपकी जो कुछ समस्याएं होगी उसका सरकार की तरफ से हम जवाब देंगे, पूरा प्रयास करेंगे। आप इस पर बस विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।
Respected Speaker, sir, I will like to talk on migration. Migration has been politicized before it has been analyzed. And this fear has been confirmed by Prajat's Clause 2 of Chapter 2, which is dealing with interstate migration, focusing on source states. I will like to ask respected Minister, sir, why there is need for compulsory reservation, especially in source states like UP, Bihar, where there is dearth of employment. I seriously doubt the intention of respected minister, sir, in doing this. It is just another political tool to distract this bholi janta from real issues like inflation and engage them in insider-outsider politics. Speaker, sir, this mess up is not ending here. There is another laughable provision about Har Gali Ghar in subclause 3, which is going to provide rupees 50 lakhs to every MPs to make houses in their constituencies. We can infer from this clause how the bill has been drafted in haphazard manner, as they basically forgot to mention the timeline in which the money will be utilized. And I am still wondering about rupees 50 lakhs. On this note, I am challenging the respected minister on behalf of 130 crore Indians to come up with any global economist and prove the viability of such scheme in Indian context. I will also like to request respected minister to do little homework before drafting any bill, as there is already scheme for housing, that is Pradhan Mantri Awas Yojana, where we can include migrant. Okay. Then why there is need for new schemes in the catchy names such as Har Gali Ghar? Yes, sir, just 2 minutes. Okay. And if you want to make houses in the names of MPs, add this provision to MP lad. But ironically, our members are such busy that they couldn't utilize it on time. And this is not just about ruling members, it is about whole parliament. We need to introspect our duties as a representative of people. Just 2 minutes, sir, I will conclude. Yes. At the end, I want to say home. Home is where the love resides. Home is where the love resides, and not where the hate mongers, not where the hate mongers. Thank you, Speaker, sir. Thank you, Honorable Speaker, sir. Speaker, sir, the bill which our government has brought in this August House contains nothing but care and goodwill towards people of Bharat, which the opposition is trying to contaminate with their polluted accusations. The opposition might have not seen the pida and durdash of migrant people in this pandemic, but we saw. We saw the hopelessness in their eyes. We saw their starved faces. Their cries have not fallen on deaf ears, sir, hence this bill. Previous MP made some allegations which I would like to clarify. He pointed out what's the need for reservation for local youth. I would like to answer him with reference to our constitution. Both clause A and B of provision 1 from chapter 2 is in accordance with article 38, which talks about promoting welfare of people, securing a just social order and minimizing the inequalities. And also article 43, which guides the government in securing living wage, standard of living and social and cultural opportunities to all workers. Private employers doesn't employ enough local youth in their companies, and so people of the states migrate. It's not like there is lack of jobs, but the jobs which people deserve are not given to them. Then why you are hiding the data of employment? Please Sir, all the data is available Which in data? all the data is available in NSO portal. ये आपने नहीं चेक किया, इसमें आपकी अज्ञानता है. दिखाइए. We have also not left out unorganized sector also, which forms bulk of this migrant population, and so policies will be made to increase jobs in this sector. He also alleged that there is no need for housing for migrant workers. The Pradhan Mantri Awas Yojana does provide housing for urban poor. However, the Har Gali Ghar scheme is tailor-made specifically for migrant people in this pandemic, so that they can live in their own state with dignity, which they have been denied for all these years. Also, the MP lad scheme, which is faulty legacy of your government, has not stood the test of time. Mr. Tejas, please. Continuing since Sit 8 जाइए, years. बैठ जाइए. Just remove it, na then. There I durust time, MPG. Also, yeah. Anna Brahmo Raso Vishnu Bhokta Deva Maheshwara, which means food is Brahma, the essence in it is Vishnu, and the one who consumes it is Maheshwara, the Lord himself. Keeping this in mind,
Additional food is also being allocated to migrant population, ensuring that no one sleeps empty stomach. मैं अपोजिशन को यह याद दिलाना चाहूँगा कि जनता ने हमको कुर्सी पे बिठाया है, आपको नहीं. बैठ जाइए. जनता का जनादेश हमको प्राप्त है, आपको नहीं. जो 70 साल में आप न कर सके वो हम करके दिखाएंगे. ये इनकी नई बीमारी है, हर चीज का जवाब 70 साल. अरे आप क्या हमसे कहते हैं? अरे बुद्ध हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है. Miss Karthik Lekhi. Thank you, Honorable Speaker, sir. Juno Powson, a British trans activist, once said that, remember this, wherever you are, however you are equally justified and equally beautiful. Of which the bill is an excellent example, for which I thank to the government. But sir, there are a few questions regarding the Chapter 2, Clause 3 of the Praja Bill, to which I would like to draw your attention to. So firstly, the government has mentioned that they are going to identify the transgenders and thereby they would give them reservation. But sir, my question is that how is the government going to identify transgenders? And how would they assure that there won't be fake identities made for the sake of reservation? Which again brings me to my next question, which is regarding the reservation of the same. Sir, is the government going to give reservation to the transgenders in OBC quota as earlier bill proposed, or are they planning to make new quota? And if so, will they hamper the present reservation structure by reducing the reservation given to some communities, or are they going to increase the total number of seats reserved? Justice delay is justice denied, sir. Yes, sir. As we are already late, and any inappropriate provisions may again delay the justice. So, I request the government to plan and formulate the provisions more precisely and serve justice at its earliest. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी. धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी. मैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा पढ़ना चाहूँगी जो कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट से आई है. एक व्यक्ति जिसका लिंग जन्म के समय दिए गए लिंग से मेल ना खाता हो और उसमें ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन शामिल हो. अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान हमेशा उसके शारीरिक मानांक पर नहीं होनी चाहिए. ट्रांसजेंडर की पहचान मनोवैज्ञानिक के परामर्श और जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी, जिसमें दोनों का बहुत सम्मानजनक और जिम्मेदार पद है. इसलिए एमपी मैडम को चिंता करने की जरूरत नहीं है. सर्टिफिकेशन करना है, डिस्क्रिमिनेशन करना है. मंत्री मैडम, क्या आपके पास लड़की होने का सर्टिफिकेट है? एमपी मैडम ने ही पूछा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा. मैडम सर्टिफिकेशन भी नहीं चाहती और मैडम ये भी नहीं चाहती कि इंसान के शब्दों पर भरोसा रखा जाए. तो मैडम अब क्या चाहती हैं कि इंसान अपना सीना फाड़ के दिखाए, उस भगवान से अर्जी लिख कर लाए जिन्होंने उन्हें बनाया है. अध्यक्ष जी, मैं संबंधित संसद सदस्य को बताना चाहूँगी कि ये आरक्षण एहसान नहीं है और मैडम न इंसाफ में कभी देरी हुई है और न कभी नकारा जाएगा. अध्यक्ष जी, जो सरकार अन्याय की ही बुनियाद पर ही खड़ी हो वो किसको क्या न्याय देगी? एमपी मैडम, हमसे ज़्यादा न्याय की तृष्णा और कोई नहीं समझ सकता. जैसा कि हमने सभी प्रावधानों को बड़े सटीक रूप से बनाया है, जैसा आप उम्मीद की थी, और साथ ही मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी कि कोई आरक्षण संरचना बाधित नहीं होगी, जैसा कि हम सभी को आरक्षण प्रदान करेंगे. धन्यवाद. Thank you, Honorable Speaker, sir. After reading Chapter 2, Clause 6 of this bill, I think that the government is trying to fool us. Because here they are mentioning that we are bringing new schemes for the betterment of intellectually challenged children and youth. But sir, there are already pre-existing schemes which are running for the same. Honorable Speaker, sir, I think that there is no need for new schemes. It is just a waste of time and money, nothing else. Honorable Speaker, sir, the question is not about bringing new schemes or not, but the question is, what about the employment of intellectually challenged youth? Is the government making reservations for them in central and state governments? Or can we increase the employability of these people? We need a clear explanation. Speaker, sir, आज
इस प्रजा बिल को पढ़ने के बाद मुझे प्रख्यात पाकिस्तानी कवि हबीब जालिब की कविता दस्तूर की कुछ पंक्तियां याद आती है। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। महोदय, विपक्ष के सांसद ने कुछ कविताओं की पंक्तियां कही, जिसके जवाब मैं भी उन्हें कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। तुम्हें फूलों से भले कांटे दिखते हैं, ये हंसी से खिले, खुशी से झूलते रुंदे तुम्हें शराबी लगते हैं। हाँ, ये भी मैं गर्व से कहूंगा कि उम्मीद की रोशनी से चाक सीनों के सिलने लगे हैं, और तुम्हारी आंखों पर तो नफरत का चश्मा है मेरे दोस्त। ये लफ्ज इंसाफ तुम क्या जानोगे, और जैन की सियासत तुम क्या मानोगे। Sir, the respected MP firstly spends more than half of his time asking questions and giving instance about some topic. Later he says that's not even the question, which I think clearly shows who is in sleep. Sir, where I come from, there's a saying for what the MP is doing, that is pata khali aari and sutar poral amari. By which I mean, though he already has all the answers in the bill, yet he is throwing allegation out of hate, which I believe are as baseless as his standings. अरे ये तो वही हुआ मिनिस्टर साहब कि नई बोतल में पुरानी शराब। अरे आप तो हमारी ही स्कीम हमें नाम बदल कर बेच रहे हो। सर, हम आपका हमारे साथ भेदभाव नहीं करते, हम स्कीम के साथ आपको भी हमारा ही मानते। But what we are trying to tell here is, we are not stopping any schemes, but we will restructure the existing schemes as they are made by the previous government, ensuring what is convenient to themselves, rather than making sure what is morally right and accessible to the common public. And sir, this investment is not just a regular school, but merely a nascent infrastructure which would make those people as capable as any other individual and will indeed boost the employment graph of the people. Speaker sir, I quote, "What you dream of, if you believe in it, it will show you the path to achieve it." Sir, I believe in sovereign, socialist, secular nation. I believe in equality of opportunities to able or disabled, but every citizen of the nation. And I would like to tell the opposition, this Praja Bill is the path to achieve it. Thank you. मंत्री जी, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपको सोशलिज्म से इतना ही प्यार है तो क्यों देश को अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया? अरे देश को तो आपने बेचा है, बोफोर्स और 2G स्पेक्ट्रम को भूल गया क्या आप? सुनिए सुनिए सुनिए, आप सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा, इसलिए सब्र कीजिए। मिस्टर जय भटनागर। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरी समझ में ये नहीं आता कि सरकार को नाम बदलने में इतनी दिलचस्पी क्यों है। जिन जगहों को ये सरकार रर्बन कहकर चिल्ला रही है, उससे पहले से ही अर्बन फ्रिंज कहा जाता है, तो ये नाम बदलने की जिद का क्या मतलब? मुझे तो लगता है ये केवल इस देश की जनता को गुमराह करने का पैंतरा है। अध्यक्ष जी, सिर्फ इसलिए कि ये जगह शहरों की तरह होते हुए भी इन पर ग्रामीण प्रभाव नजर आता है, तो सरकार उन जगहों पर जंगल बना देगी, और भविष्य में जब वहां लोक संख्या बढ़ेगी तब क्या उन जन समुदायों के लिए क्या यही सरकार वही उगाए हुए जंगलों पर बुलडोजर चढ़ाएगी? अध्यक्ष जी, मैं ये मानता हूं कि उन जगहों में रहने वाले लोगों को भी आधुनिकता से भरा सुखदायी और आरामदायी जीवन जीने की चाहत होगी। वो भी अपने और अपने आने वाले पीढ़ी के विकास के सपने देखते होंगे। देखिए, भारत के वन आवरण को बढ़ाने का महत्व हम सब समझते हैं, लेकिन हर बार मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप्स के लोगों को ही क्यों पर्यावरण संबंधित बदलाव का भार उठाना पड़ता है? ये अन्याय हम कदापि नहीं सहेंगे। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल सरकार से है, क्या अपनी सभ्यता से जुड़े रहना, क्या अपनी परंपरा से, अपनी देश की मिट्टी से जुड़े रहना इतना बड़ा जुर्म है जिसकी सजा के तौर पर हम उन जगहों में रहने वाले लोगों के विकास पर, उनके सपनों पर पेड़ लगा दें? माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सांसद जी से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस बने हैं जो पर्यावरण के लिए बनाए गए, पर वो सब कागज पर ही है, ना उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ है, ना पर्यावरण की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। और अब हम कुछ नई नीतियाँ लाना चाहते हैं तो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ नाम बदल रहे हैं। अरे ये नाम वाम बदल कर देश की जनता को गुमराह करना हमसे ज़्यादा तो आपको अच्छे से आता है।
सामान्य लोगों को इस नीति का अर्थ और ये किन जगहों पर अमल करी जाएगी, ये सरल शब्दों में समझाने के लिए हमने ऐसे नाम रखे हैं महोदय। ये अर्बन फ्रिंज जैसे कठिन शब्दों के जाल जनता पर फेंकने से क्या ही हासिल होगा। अब अर्बन की बात करें तो ये एक प्रचलित शब्द है। इसका अर्थ अगर आपने पढ़ा ना हो तो मैं बता दूं कि ये वो एरियाज होते हैं जो डेवलपिंग होते हैं, जिनके पास लैंड अवेलेबल होती है। अब हम लोगों के घर उजाड़ कर तो वहाँ पेड़ नहीं लगा सकते ना। अरे जंगल तोड़कर कैसा विकास हो रहा है? आरे कारशेड प्रकल्प में क्या हो रहा है? उत्तर दीजिए। और रही बात इन एरियाज के लोक संख्या की, तो हम पूरी तरह से इनकी पॉपुलेशन की बढ़त का ख्याल रखेंगे। फॉरेस्टेशन के जो एरियाज होंगे उनको रेगुलेट भी किया जाएगा। हरित कवच रेगुलेशंस पर हमेशा ही प्रभाव रखेगा। महोदय, पर्यावरण के लिए पिछली कई सरकारों ने नीतियां बनाई है, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे और कितना हुआ है ये तो आंकड़े ही बता देंगे। हमारी सरकार आने के बाद भारत का ग्रीन कवर 2261 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा है। अरे भारत का ग्रीन कवर 1,20,000 हेक्टेयर से कम हुआ है आपकी सरकार आने के। आप सुन लीजिए, ये ऑथराइज्ड आंकड़े हैं, आप सुन लीजिए पहले। और ये बढ़त सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव भी है। मैं खुश हूँ कि आपको ये बात देर से ही सही पर समझ में तो आई कि सभ्यता से जुड़े रहने में कोई गुनाह नहीं, इसके साथ भी शाश्वत विकास हो सकता है। और आपने सही कहा था, ये जिद तो है मगर नाम बदलने की नहीं, बल्कि भारत के धरती का, उसके पर्यावरण का, भारत की जनता का शाश्वत विकास करने की जिद है। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय, हरित कवच सिर्फ नाम का कवच नहीं बल्कि भारत के पर्यावरण के लिए अभेद्य कवच बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं। धन्यवाद महोदय। मिस्टर श्रीधर जोशी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, अब तक की चर्चा आपने सुनी, आपने ये तो देख ही लिया होगा कि सरकार ना सवाल सुनना चाहती है ना सच सुनना चाहती है, और इसलिए हाल कुछ ऐसा हो जाता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बहरहाल हम यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि बनकर आए हैं, सवाल पूछना हमारा काम है। वैसे अध्यक्ष जी, आज मुझे अपनी लघुता का सचमुच एहसास हुआ। प्रजा विधेयक के 3 अध्याय की 3 धारा के अनुसार पारसी, सिख, जैन और बौद्ध समुदायों का लोक संख्या में हिस्सा बरकरार रखने हेतु सरकार उन्हें प्रोत्साहन देगी। ये पढ़ते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। मैं ख्वामखा सोचता था कि यहूदी और अहमदिया भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो संख्या में बहुत कम हैं और शायद जिन्हें अपनी पहचान महफूज रखने के लिए सरकार की ज़रूरत है। अध्यक्ष जी, मैं तो ये तक सोचता था कि भाषा, प्रांत आदि भी देश की संस्कृति के हिस्से हैं। ये विधेयक जिस कल्चरल होमोजेनिटी की बात करता है उसके हिस्से हैं, और इसलिए बीचस्तानी, गढ़वाली, गोंडी, किन्नौरी आदि भाषाओं और उन्हें बोलने वालों तथा नष्ट होने की कगार पर खड़ी ईशान्य तथा मध्य भारत की जनजातियों को सरकार की मदद की जरूरत है। अब मुकेश साहब ने एक गीत गाया है जिसकी एक पंक्ति मैं दोहराऊंगा कि सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। तो क्या मुझ जैसे अनाड़ी को मंत्री जी ये समझाने का कष्ट उठाएंगे कि किस अद्वितीय सोच के साथ इस विधेयक ने इन्हीं 4 समुदायों को काबिले हिफाजत माना है? माननीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय सांसद के प्रश्न का जवाब बाद में विस्तृत रूप से दूंगा। मिस धनश्री। Thank you, Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, we love placing people on pedestals. We love to believe grand stories of sacrifice and undying love. One such myth is that of selfless parents that sacrifice everything for the children. हम सभी ने कौशल्य और यशोदा की मार्मिक कथाएं सुनी और सुनाई है। वो कथाएं कितनी प्यार भरी और भावनिकता से जुड़ी हुई है। इसी पृष्ठभूमि पर हम उन माता पिताओं के मुद्दे पर विचार करते हैं जो अपने HIV पॉजिटिव और विकलांग बच्चों को जन्म के बाद छोड़ देते हैं। स्वाभाविक रूप से वैसे क्रूर हरकत करके अभिभावक जैसे मजबूत रिश्तों को कलंकित करते हैं, जो कि पूरी तरह से दंड के पात्र ठहरते हैं। The Praja Bill also, perhaps influenced by these cultural biases, seeks to take criminal action against parents who abandon their HIV positive and disabled children after birth under Chapter 3, Clause 3. मुख्य अतिथि का आगमन हुआ है, इसलिए संसद की
कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित की जाए। Ladies and gentlemen, in a short while from now, we shall see the arrival of Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, the Government of India, Madam Bharati Pawar. You all are requested to kindly put on your masks. ज्यांच्याकडे मास्क आहे त्यांनी सर्वांनी मास्क घालून घ्यायचे आहे. Ladies and gentlemen, the Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Madam Dr. Bharati Pawar, has arrived. बहुत बहुत स्वागत है महोदया आपका. मैं विनम्र निवेदन करता हूँ माननीय सर डॉक्टर MS गोसावी जी से कि वे कृपया माननीय मंत्री महोदया मैडम भारती पवार जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें. हम मैडम को शॉल और गोखले एजुकेशन सोसाइटी एवं HPT आर्ट्स एवं RY के साइंस और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की ओर से मोमेंटो भी प्रदान कर रहे हैं. आइए हम सब करतल ध्वनि से इस ऐतिहासिक मौके का स्वागत करें. थैंक यू मैडम. थैंक यू सर. Accompanying the Honorable Chief Guest, Honorable. Sir Sunil Bachao, Sir Umesh Kare, and Sir Prashant Khere. I request Honorable Principal Sir to do the honors. Let the proceeding of the House begin. Continue. Ms. Dhanashree. Thank you, Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, we love placing people on pedestals. We love to believe grand stories of sacrifice and undying love. One such myth is that of selfless parents that sacrifice everything for the children. हम सभी ने कौशल्य और यशोदा की मार्मिक कथाएं सुनी और सुनाई है. वो कथाएं कितनी प्यार भरी और भावनिकता से जुड़ी हुई है. इसी पृष्ठभूमि पर हम उन माता पिताओं के मुद्दे पर विचार करते हैं जो अपने HIV पॉजिटिव और विकलांग बच्चों को जन्म के बाद छोड़ देते हैं. स्वाभाविक रूप से वैसे क्रूर हरकत करके अभिभावक जैसे मजबूत रिश्तों को कलंकित करते हैं जो कि पूरी तरह से दंड के पात्र ठहरते हैं. The Praja Bill also, perhaps influenced by these cultural biases, seeks to take criminal action against parents who abandon their HIV positive and disabled children after birth under Chapter 3, Clause 3. Like Brutus in Shakespeare's Immortal, Julius Caesar it asks, who is here so vile that will not love their children? Honorable Speaker sir, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि ये कौन से काल में जी रही है? वो तो प्राचीन काल में जी रही है. I am sure she knows it's the 21st. I am sure she also knows that raising children is not child's play, especially when they have special needs. I am sure she also knows that state aid, both financial and in terms of accessible healthcare, is needed by the parents of such children, especially if they are poor. I am sure she's also learned enough to understand that vilifying and punishing such parents will still not give the children loving families. Yes, but the minister says that such parents are villains and worthy of punishment. What can I say but this? Like Mark Antony from the same play, the minister is an honorable woman. Thank you.
Thank you, Honorable Speaker, sir. From the MP ma'am's speech, it has come to my understanding that she is well versed in giving analogies. सांसद ने यशोदा और कौशल्या की याद दिलाई तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पुराणों में हिरण्यकश्यप नाम के दैत्यों का राजा एक निर्दयी पिता का उदाहरण है जिसने अपने बेटे प्रहलाद को मारने की जी जान लगाकर कोशिश की। अगर मैडम जी आप पुराण अच्छी तरीके से पढ़ते तो आपको ये पता चलता कि हिरण्यकश्यप वाज अ पेरेंट। पुराण अच्छी तरीके से पढ़िए, होमवर्क की जरूरत तो आपको ज्यादा है हमसे। पता है किसको? ऐसी घटनाओं को आप मत भूलिए। स्पीकर सर, even such tendencies exist in the society. She also quoted Shakespeare that who is so vile that don't love their children. हमारी पंक्तियां दोहराना बंद कीजिए और आपको स्पीकर जो भी सर, है वो इनकी करिए पहले। दिक्कत क्या है? जब इन्हें टाइम मिलता है तभी ये बोलते हैं, जब क्योंकि आप हमें झूठ वक्त मिलता है बोलते हैं, तभी इसलिए ये आपको बोलते हमेशा हैं। बोलना आप सुन पड़ता है। लीजिए मैडम जी। Please maintain the decorum. Millions of the children are abandoned each year by their parents, all too often for several reasons. They are put in the plastic bags and left to die in the garbage drums, or put away near temple, hospitals, and orphans. Generally, many unwanted newborn children are abandoned because they are females, as the family desires a male child, one who will take the family legacies further. Honorable Speaker, sir, less than 2% of India's roughly 3 crore odd orphans and abandoned children enter its childcare institution as known as the shelters, and fewer than 2,000 of them make it to the India's legal adaptation system at any point. The rest given up in the illegal adaptation brought the cruel national irony. Recently, NCRB released a report on abandoned children in which Delhi and Maharashtra emerged that saw the highest number of desertion between forticides and infanticides. Over 30,000 prospective parents are waiting 2 or 3 years. On the other side, children are being killed or traumatized through the unsafe abandonment. MPM says that there are various schemes for such parents to take care of the children. Parents who already decided to throw out their part of the life will take the efforts to find such schemes to raise them. So this bill make provisions to prosecute them. If MPM has been left with the stand of kindness and compassion towards her children, then she will understand the importance of this. Thank you, Speaker, sir. अध्यक्ष जी, ये सभा में क्या चल रहा है? हमारे सांसदों के व्यक्तिगत जीवनों पर टिप्पणी की जा रही है। क्या सदन की गरिमा को शोभा देता है? मेरा सभी से अनुरोध है कि कोई भी किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी ना करे। ये संसद के गरिमा को शोभा नहीं देता। इसलिए आप माननीय मंत्री जी, आपकी ये बात रिकॉर्ड पर नहीं ली जाएगी। मिस श्यामल बंसल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सारे सांसदों को ये कहना चाहती हूँ कि जनता को गुमराह करके ये जो नए प्रावधानों का रंग सरकार अपने ऊपर डालकर सजा रही है, एक दिन वास्तविकता की बारिश इस रंग को जरूर साफ करेगी और पूरी जनता के सामने सरकार का असली मकसद आने में देरी नहीं लगेगी। Honorable Speaker, sir, the government is planning to introduce various schemes through this bill, but most of the schemes are already exist, like pension scheme. Also, government is promising the state the funds for implementing most of the schemes. But what is the guarantee that the GST compensation kind of situation will not happen here? Isn't it pragmatic to let the state handle the problem of population control according to their needs? For me, the bill with all these glorious schemes and incentives is nothing but the waste of the money of all hard-working taxpayers. माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रजा विधेयक देखकर मुझे लग रहा है कि सरकार बस नई योजना और प्रावधानों के पहाड़ बना रही है, जिसकी नींव सरकार के ऊपर बढ़ रहे कर्जे के कारण अस्थिर है। और मुझे लगता है कि ऐसे पहाड़ों पर खड़े रह के और अपनी कामयाबी के त्योहार मनाते हुए सरकार के ऊपर से गिर जाने की प्रबल संभावना होती है। So, Honorable Speaker, sir, I vehemently oppose the bill as it has more to do with ward politics than population control. Thank you. माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी।
सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष की माननीय सांसद को यह बताना चाहूंगी कि देश की जनता को गुमराह करना इतना भी आसान काम नहीं है और गुमराह करने वाली सरकार को देश की जनता ने पहले सत्ता से बाहर कर दिया है। अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य देश के टैक्स पेयर्स के लिए चिंतित थे, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि बिल में नए टैक्स का कोई भी प्रावधान नहीं है और अगर बात की जाए मौजूदा पॉलिसीज और स्कीम्स की तो हर एक स्कीम किसी न किसी उद्देश्य और देश के विभिन्न वर्गों के लिए लाई गई है। उदाहरण के लिए पेंशन योजना स्कीम उन वृद्ध दाम्पत्यों के लिए है जिनकी कोई संतान नहीं है। हमें यानी कि सरकार को ऐसा लगता है कि उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि माननीय सांसद को यह विधेयक गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। प्रजा बिल के अनेक प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों को अपने जरूरतों के हिसाब से अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है और इसके उपरांत भी वो अपने आवश्यकताओं के हिसाब से पॉलिसीज बनाने के लिए स्वतंत्र है। मैं केंद्र सरकार की तरफ से यह आश्वासन देती हूँ कि प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों को धनराशि देने के लिए हम बाध्य है। और अध्यक्ष जी, मैंने विपक्ष की माननीय सांसद को अच्छे से सुना। उन्होंने सरकार के ऊपर आने वाले कर्जे पर चिंता व्यक्त की है। अगर यही चिंता उन्होंने देश की जनता के लिए दिखाई होती तो इस बिल को बिना समझे विरोध नहीं करती। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस पूरी संसद को यही बताना चाहूंगी कि प्रजा बिल की नींव सरकार के ऊपर आने वाले कर्जे पर नहीं बल्कि जन कल्याण के हमारे दृढ़ निश्चय पर कायम है। मैडम जी, क्या ये दृढ़ निश्चय आपको पैसे देने वाला है? आपके पास तिजोरी है उस नाम की? प्लीज सामन जी बैठ जाइए। देखिए, अ गुड स्पीकर इज ऑलवेज अ गुड लिसनर। किसी के व्यक्तिगत जीवन पर जी बिल्कुल सर। Sir, with your permission, I would like to quote some lines of Nobel laureate. If you don't halt the population growth with justice and compassion, it will be done by nature, brutally and without pity. At last, I would like to conclude here. The Praja Bill will definitely serve the purpose of controlling and regulating the population growth in most appropriate way, and it will definitely contribute in building the better future of country. Thank you so much. Ms. Vaishnavi Gaikwad. Thank you, Honorable Speaker, sir. Today, I would like to raise a few questions about the need to conduct a caste-based census. ये जो ख्याली पुलाव सरकार पका रही है, इससे मैं इनको बाहर लाना चाहूँगी. The reality is that conducting a caste census at this point of time is nonsense. It is literally unfeasible from an administrative, operational, logistical and financial point of view. Honorable Speaker, sir, I would like to mention here that there are 2,479 OBC castes in central list and 3,115 states and union territories list. Then my question is, how is government going to collect data of so many castes? On basis of which scientific parameters and standards are they going to collect data? Everyone can imagine the financial stress of doing this. No needed talk about it. Speaker, sir, the government is doing this caste census just to please their vote bank. इन्हें बस वोटों से अपने पेट भरने हैं. Yes, sir. Yes. Many castes, but this will lead to many disastrous consequences. Many castes will demand reservations from themselves. There will protest from different sections of society, which can disturb public order and security. It will ultimately lead to increase in reservation politics in India, which I think so exactly what government wants, so that they can reap the benefits of the same. Yes, sir. Yes. Just a minute. Honorable Speaker, sir, today we dream of caste society. But this caste census will multiply the caste divisions and will further divide the divided Indian society. Thank you. माननीय मंत्री जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. जाति आधारित जनगणना यानी कास्ट सेंसस के बारे में हमारे विपक्ष के सांसद ने जो प्रश्न किए, ऐसे प्रश्न भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में होना एक स्वाभाविक बात है. अध्यक्ष जी, हमारा भारतीय समाज असंख्य जाति, वर्ग, समुदायों में बटा हुआ है और यही हमारे देश की विविधता भी है. लेकिन अगर इन समुदायों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन की बात की जाए तो
कुछ ही लोगों तक सरकार की योजनाएं, अवसर और विकास की बातें पहुंच पाई है। सही और ज़रूरती लाभार्थियों को पहचानने के लिए सरकार को उसकी पार्श्वभूमि पता होनी चाहिए और यह पार्श्वभूमि हमें जातीय जनगणना के आधार पर आसानी से मिल सकती है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो भारत में 1931 में पहली जाति आधारित जनगणना हुई थी। उसकी रिपोर्ट मैंने सभा के पटल पर रखी है। उसके बाद 2011 में वोटों को बचाने के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध सरकार ने कास्ट सेंसस किया, जिसका उसके परिणामों को आज तक उन्होंने गुप्त रखा है। अरे तो जब सरकार आपकी आई तो आपने क्यों रिलीज नहीं किया? आज अगर इन दोनों परिणामों को देखा जाए तो 1931 में टोटल जातियों की संख्या 4076 इतनी थी और 2014 की रिपोर्ट के अनुसार जातियों की संख्या 4 लाख इतनी प्रचंड है। 2014 की रिपोर्ट पूरी तरह से यूजलेस है, जिसमें 8 करोड़ एरर पाए गए हैं। तो सोचिए आप करेंगे तो क्या होगा? देश के कई राज्यों में कास्ट सेंसस की मांग बढ़ रही है, उससे केंद्र सरकार पर भी दबाव बन रहा है। उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र में तो राज्यों के द्वारा इसकी तैयारियां भी जारी है। अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 खंड 4 हमें पिछड़ी जातियों के लिए काम करने को बढ़ावा देता है। अगर हम कास्ट सेंसस के जरिए इन जातियों को पहचान सके तो सरकार की योजनाएं अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने में सहायता होगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम कास्ट सेंसस का प्रावधान इस विधेयक में लेकर आए हैं और यह प्रावधान इस देश के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को समृद्ध बनाने में हमारी सहायता करेगा, इसमें कोई शंका नहीं। धन्यवाद। माननीय गृहमंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सभी सदस्यों का आज धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आज एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक बहस हुई। ये एक अलग बात है कि हमारे विपक्ष के कुछ साथी, कुछ सांसद, जिन्हें शांति काल में अशांति पैदा करने की महारत हासिल है। अध्यक्ष, तलवार की नोक पे है आपकी शांति। आपकी दिक्कत क्या है भाई? बोलने तो दीजिए। महोदय, आज चर्चा की सभी बातों को ध्यान में रखकर सरकार को यह प्रजा यानी पॉपुलेशन रेगुलेशन एंड जनसंख्या अवरोधक यह विधेयक लाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, इस बात पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। इन्होंने ऐसे कई मुद्दे उठाए और सदन को गुमराह करने का प्रयास किया। मिनिस्टर साहब, अध्यक्ष जी, गुमराह किया कि नहीं ये हमें आप नहीं बस मालूम। सुन लीजिए, आप और सुनिए। आपकी सरकार ने जरूर जनता को गुमराह किया आपको है। सुनना पड़ेगा भाई। इन्होंने अध्यक्ष जी आरक्षण को लेकर कुछ प्रश्न उपस्थित किए, तो मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह विधेयक रिजर्वेशन की चौखट को किसी भी तरह की आपदा नहीं पहुंचाता, ना ही भविष्य में ऐसा कुछ होगा। मान्य आरक्षण का महत्व सरकार अच्छी तरह से समझता है। मान्यवर, इन्होंने यहूदी और अहमदियों के बारे में चिंता व्यक्त की, तो मैं कुछ तथ्य सदन के सामने रखना चाहूंगा। हम इस विधेयक में सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, न कि जातीय अल्पसंख्यकों की। मुझे एक बात ये भी था जनाब कि ऐसा क्यों आप सिर्फ धन की आपको सुनना ही पड़ेगा, जनता ने हमें चुनकर भेजा है, आपको सुन ही लेना पड़ेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि आपके लिए आखिर माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है, माइनॉरिटी को आप समझ तो क्या है? क्योंकि अध्यक्ष जी, जब भी सदन में माइनॉरिटी को लेकर बात की जाए तो ये लोग कुछ चुनिंदा लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को लेकर ऊंचे, सुन लीजिए आप, सबके उत्तर मिलेगा, आप बस सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, उन्हीं को लेकर ऊंचे आवाज में बहस करते। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब जैन, बुद्ध, सिख, इनको आप धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं मानते क्या? उनके हितों के बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे क्या? मैं दोहरा देनी है चीजें। अध्यक्ष महोदय, अमेरिका में 39% यहूदी धर्म के लोग रहते, इजराइल में यही प्रमाण 45% जितना बड़ा है। यहूदी धर्म का उदय भारत के बाहर हुआ था, वो यहाँ पे किसी कारण से आए थे। वो इस संस्कृति की, इस मिट्टी की श्रेष्ठता है कि उनको यहाँ पर समरस कर लिया गया। क्या सिख समुदाय और बौद्ध समुदाय के लोग भारत के बाहर से आकर भारत में बसे हैं? अध्यक्ष जी, इन सभी समुदायों की जड़ें इसी सनातनी मिट्टी से जुड़ी है। पारसियों की यह सभी, सुन लीजिए, यह सभी मां भारती की कोप से आई हुई संस्कृतियां है, जिसका कण कण इस मातृभूमि के लिए समर्पित है। मान्यवर अध्यक्ष जी, इन समुदायों की संख्या अगर लगातार बढ़ती तो हम उनके लिए भी इस विधेयक में प्रावधान लाके, लेकिन उनकी संख्या लगातार कम होने से सरकार के लिए और देश के लिए वो समुदाय चिंता का विषय बन गए। तो क्या उनको मिट जाने दे, उनकी श्रेष्ठ विरासत नष्ट हो जाने दे? ऐसा सरकार को कभी मंजूर नहीं है। मान्यवर, उनकी रक्षा भारत नहीं करेगा तो और कौन करेगा? फिर यह सब भारत को ही करना होगा और इसी मातृभूमि की संतान होने के नाते हम
उनके लिए यह विधेयक लेकर आए और उन्हें किसी भी प्रकार में संरक्षण देकर रहेंगे। अध्यक्ष जी, हमने जनसंख्या का कानून लाते समय समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, इसलिए इसका नाम भी हमने प्रजा रखा है। विपक्ष इसको अच्छे से जानता होगा। मान्यवर, इन्होंने ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात की कि सरकार उनको कैसे पहचानेगी। अध्यक्ष जी, मैं बस ये बताना चाहूंगा कि हमें बस हमारा नजरिया बदलने की आवश्यकता है और आपको थोड़ा उस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि 19वीं सदी में बस 2 जेंडर्स को इक्वालिटी देने की बात होती थी। यह नया भारत है मान्यवर, यहाँ पे तीनों जेंडर्स को समान न्याय एवं समान हक मिलने का प्रयास सरकार की तरफ से जारी। समाज के सभी वर्गों में जनसंख्या नियंत्रण का काम चल रहा है। हाल ही में श्रीलंका में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से जनसंख्या नियंत्रण में कई बदलाव सामने आए। संयुक्त राष्ट्र संघ का रिपोर्ट भी यही कहता है। इसी बात को सामने रखकर भारत में भी हमारी बेटियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव पर सरकार का विचार जारी। मान्यवर, हमारे कुछ सांसद भाइयों ने भारतीय सभ्यता के बारे में कहा, तो मैं आप सभी के समक्ष ये बात उनको बताना चाहूंगा कि आप और भारतीय सभ्यता की बात ना करें, इसी में देश की अच्छाई है। मंत्री जी क्यों ना करें? क्या सभ्यता सुनिए, बोलने का बताता अधिकार सिर्फ हूं आपने क्यों ना रखा करें, है? वो भी बताता हूं भाई। अध्यक्ष जी, जिन लोगों ने अपने उज्जवल सभ्यता के साथ, अपने उज्जवल इतिहास के साथ खिलवाड़ की, चाहे वो स्वतंत्रता के पहले हो या फिर स्वतंत्रता के बाद में, मध्ययुगीन में भारत में आए हुए कुछ लुटेरों को, कुछ आक्रामकों को ग्रेट कहकर बड़ा अधिकार, की बात कर रहे हैं आप पढ़कर नहीं आए क्या यहाँ पे? आपने तो कभी किताबें पढ़ी नहीं है जनाब। उनको बड़ा दिखाकर जानबूझकर इस भारत भू को स्वाभिमान जागृति से दूर रखा। स्वतंत्रता के बाद भी शरीर से भारतीय और मन से अंग्रेज ऐसी शिक्षा पद्धति का अवलंबन किया। क्या वो हमें भारतीय सभ्यता के बारे में कहेंगे? अध्यक्ष जी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अशफाकुल्ला खान ऐसे कई क्रांतिकारियों के साथ की हुई नाइंसाफी को ये देश कभी भूल नहीं सकता। अध्यक्ष जी, इन्हें प्रख्यात पाकिस्तानी कवि हबीब जालिद याद है, लेकिन महाकवि कालिदास, बाणभट्ट, संत कबीर, तुलसीदास, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ऐसे कई कवियों को इन्होंने इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया। उनकी अमूल्य रचनाओं को शिक्षा से जानबूझकर दूर रखा और यह हमें भारतीय सभ्यता के बारे में अरे जात ना पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, संत कबीर नहीं कहा था। आपका अध्यक्ष जी, इनकी ये परंपरा चलती आ रही है, बस सच बातों को विरोध कर। सच से एलर्जी है आपको, ये जनता को भी पता तो है नहीं कभी जिंदगी में। मैं बताना चाहूंगा, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि मैंने माननीय मंत्री जी को बोलने का मौका दिया है, तो आप उनकी पूरी बात सुन लीजिए। कंटिन्यू। मैं बताऊंगा कि जिस मिट्टी से आप जुड़ने की बात करते हैं ना, वो हमारे लिए मिट्टी नहीं चंदन समान है। और उसी को चंदन सांप ही गले लगाता है, सुनिए आप मत बोलिए और मंत्री उसी जी। चंदन का तिलक करके इस मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने में हम अपना बिल्कुल सौभाग्य चंदन है, मानते हैं। चंदन विश्व अध्यक्ष जी, रहते भुजंग। यह विधेयक विपक्ष अगर अच्छे से पढ़ता, इसे अच्छे से समझता, तो इस बात पर इतनी बहस करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि यह समाज का, एक जनता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत जैसे देश के लिए जनसंख्या अवरोधक और उसके नियमन के लिए कानून होना बहुत ही जरूरी बात है। पूरा विश्व अब भारत के वसुधैव कुटुंबकम पर भरोसा करने लगा है। जो गलत है उसका विरोध कीजिए, लेकिन जो बातें जनता के लिए महत्वपूर्ण है उसमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। अकेले हम क्या क्या करेंगे मान्यवर? हमारे पुरखों ने दिन रात एक करके इस भारतीय लोकतंत्र का जिम्मा हम पर सौंपा है। इसकी रुचि, इसकी श्रेष्ठता हमें बरकरार रखनी होगी। अंत में मैं बस यही कहूंगा, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए और इस देश का अमर लोकतंत्र रहना चाहिए। अध्यक्ष जी, और इस अमर लोकतंत्र के लिए इस विश्व का भार अपने कंधों पर उठाने वाली संयमित, संतुलित, सर्वसमावेशक आप कह रहे हैं? सर्वसमावेशक आप तो बोलिए मत इसके बारे में। जनसंख्या और उन्नत जनसंख्या होनी चाहिए। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि पक्षीय राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर इस जनता का विचार कीजिए और सरकार को यह विधेयक पारित करने में, सरकार बहुमत के साथ पारित करने में सरकार का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मैडम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पहले तो मैं इस संसद में उपस्थित सभी सांसदों का, खास तौर पर हमारे विपक्षी भाई और बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज सुबह से जो सदन में चर्चा हुई है, सभी सदस्यों ने संशोधनपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे, अपनी चिंता व्यक्त की। महोदय, इस कार्यवाही को देखकर, समाज में होने वाली ये चर्चा देखकर, इसकी हर एक पहल भारत के लोकतंत्र का भविष्य में देखती हूँ।
हमारी कोशिश रही है कि जो आदर्श हमारे महान नेताओं ने, हमारे महान संतों ने हमारे सामने और इस देश के सामने रखे हैं, उसी पथ पर हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितनी ही भारत की निंदा करें, पर कोई नहीं है दुनिया में जो कह सकता है कि आज भारत जितना शक्तिशाली है वैसे वो पहले कभी था। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की जनसंख्या अगले 20 सालों में 169 करोड़ होगी। अगले 10 सालों में 21 करोड़ के आसपास बच्चों के जन्म की संभावना है। हर किसी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी होगी और ये बच्चे जब स्कूली उम्र तक पहुंच जाएंगे तो हर किसी को उच्चतम शिक्षा की आवश्यकता होगी। जब ये बड़े हो जाएंगे, जब ये युवावस्था में प्रवेश करेंगे, तब रोजगार की तलाश में रहेंगे। इसी कारण जनसंख्या नियंत्रण और नियमन को सरकार अपना कर्तव्य समझती है। अगले कुछ आने वाले वर्षों में शहर ये देश की समस्त जनसंख्या वृद्धि को समाहित कर लेगी और जब भी गरीबी खत्म करनी हो, प्रदूषण को कम करना हो, सुरक्षित पेयजल और आवश्यक सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना हो, तो इन सभी को ये विधेयक अग्रिम पंक्ति में रखता है। हमें महिलाओं और लड़कियों को परिवर्तन के माध्यम के रूप में शामिल करना होगा, न कि केवल लाभार्थी और पीड़ितों के रूप में। इसके वजह से परिवार, समुदाय और देश को ही लाभ होगा। महिलाओं को सशक्त बनाना हमारा उद्देश्य है। माननीय विपक्ष के नेता ने जो मुद्दे उठाए वो वाकई में काबिल तारीफ थे। पिछली सरकारों ने देश के लिए किए हुए कार्य उनके मुंह से सुनकर हम सभी तो धन्य हो गए। उन्होंने कहा कि लोक संख्या नियंत्रण और नियमन इस क्षेत्र में पहला कदम पूर्व प्रधानमंत्री जी ने उठाया था, पर क्या वो कदम इस देश को सही दिशा में ला पाया? आप करंट सिचुएशन पूछ रहे थे, ये हमें बताने की जरूरत नहीं, ये आपको आंकड़े ही बता देंगे। मैडम जी, हमने करंट सिचुएशन बताई थी, ना कि पूछी थी। देश के लिए कुछ ना करने का श्रेय पिछली सरकार को ही तो जाता है। महोदय, आज की चर्चा में हम दो हमारे दो का जिक्र किया गया। 19वीं सदी में देखा जाए तो ज़्यादा बच्चों को जन्म देना एक आवश्यक समझी जाती थी, क्योंकि साल में कई संक्रामक बीमारियां आती थी और ये भारी भरकम मृत्यु दर का कारण रही। हाल ही में हमने कोरोना जैसे भयंकर बीमारी का सामना किया है। इन सभी बातों का परिणाम जनसंख्या वृद्धि पर होता है। लेकिन क्या आज उस वक्त की तरह ज़्यादा बच्चों को जन्म देना आवश्यक है? शिक्षा का स्तर बढ़ने से और आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर सम्मान सुरक्षा भरा जीवन जीने के लिए लोग अब छोटे परिवारों में रहना पसंद कर रहे हैं। अब हम दो हमारे दो का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने का समय आ गया है। मान्यवर, हम पर वोटों की राजनीति करने का आरोप किया जाता है। मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहती हूँ कि महोदया और महोदय, हमारे पास भी 5 सालों का जनादेश रहा है। पिछली सरकारों की तरह हम भी 5 साल सत्ता का उपभोग ले सकते थे। कल कहा कौन सा चुनाव है, कहाँ राजनीति करनी है, हम ऐसा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, इस देश की समस्याओं को कितना टालेंगे? हमें न चुनाव की चिंता है न वोट बैंक की। इस देश की समस्याओं का सामना करने में ही हमारा समाधान है। ये जनसंख्या नियंत्रण का जीवित मुद्दा है। बस आज ही नहीं, देश के भविष्य में भी इस निर्णय का लाभ होगा। मान्यवर, ये विधेयक अगर 10 साल पहले लाया जाता तो सोचो, आज हम जनसंख्या दृष्टि से एक संतुलित राष्ट्र होते। क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का परिणाम हर क्षेत्र में नजर आता है, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, मतदाताओं की संख्या हो, शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक जैसे सभी क्षेत्रों पर जनसंख्या वृद्धि परिणाम करती है। हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः इस दृष्टि पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हमें सभी की उन्नति देखनी है और इसी विचार से पूरे विश्व का नेतृत्व करके भारत माता को फिर से विश्व गुरु का वैभव दिलाना चाहते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि सही वक्त पर सही निर्णय लेने से राज्य सुरक्षित रहता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ये विधेयक लेकर आई है। इसमें कोई सुधार करने हो तो ज़रूर बताएं, लेकिन बिना किसी अभ्यास के विरोध करना ये संसदीय गरिमा को शोभा नहीं देता।
अब इतिहास में लिए गए निर्णयों को दोष देने से कुछ नहीं होगा और ना ही वर्तमान के निर्णयों का विरोध करके। भारतीय घटना एक जीवित लोकतंत्र की बुनियाद है, इसीलिए जो अच्छा है उसे लेकर हमें भी माँ गंगा जैसे अविरत बहना होगा। सभी से मेरा ये अनुरोध है कि जनता के इस महत्वपूर्ण विधेयक का आप सभी सम्मान करें और इसे पारित करने में सरकार का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रजा 2022 इस विधेयक को पारित किया जाए। The question is that the Population Regulation Act and Jansankhya Avarodhaka Praja 2022 shall be passed. Those who are in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I assume the result of the vote is in the favor of the bill. I think Honorable Speaker sir, I would like to raise a point of order. ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है, सिर्फ वॉइस वोटिंग नहीं हो सकती. We want division. We want division. बात में एक दिक्कत है. it is point of order. Let me consider on voting. The result of the vote is in the favor of the motion. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed and sent to Rajya Sabha. The House is adjourned. अब मैं अति आदर के साथ विनम्र अनुरोध करता हूं माननीय राज्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार मैडम डॉक्टर भारती पवार जी से कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। ओके, आई रिक्वेस्ट सर डॉक्टर एम एस गोसावी टू शेयर हिज वर्ड्स ऑफ विजडम विद अस। आपल्या संस्थेच्या इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षराने लिहिता येईल असा हा अभ्यासक्रमातला एक चांगला उपक्रम आपल्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे अत्यंत प्रभावी झालेला आहे असं मला नमूद करावं वाटतं। माननीय पवार मॅडम यांनी आपल्याला वेळ दिलेला आहे आणि सर्व इतर महत्त्वाची कामं दूर करून त्यांनी आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला या संस्थेला उपकृत केलेला आहे। आपण विषय फार चांगला घेतलेला आहे आणि सर्वच मंडळींनी दोन्ही बाजूंनी उत्तम तऱ्हेनं त्याचं मार्गदर्शन आपल्याला केलेलं आहे। बोलावं कसं, मांडावं कसं, सांगावं कसं, विषयाच्या कुठेही दूर न जाता प्रभावीपणे आपला मुद्दा कसा मांडावा हे मला वाटते आज फार चांगल्या तऱ्हेनं आपल्या सर्वांच्या पुढे आलेलं आहे आणि त्यामुळे मी विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन करतो। आमचे सर्व शिक्षक जे आहेत त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे, त्यांना धन्यवाद देतो। आणि अशा प्रकारचा उपक्रम कोरोनाच्या काळामध्ये काहीच होऊ शकलं नाही, परंतु या 2-3 वर्षात काय 4-5 वर्षात काय HPT कॉलेजच्या इतिहासामध्ये हा नमूद होईल असा उपक्रम तुम्ही केलेला आहे, त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your words of wisdom and encouraging all of us here. अब मैं अति आदर के साथ विनम्र अनुरोध करता हूँ माननीय राज्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार मैडम डॉक्टर भारती पवार जी से कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। थैंक यू। नमस्कार। अध्यक्ष महोदय की परवानगी हो तो मैं निवेदन कर सकती हूँ, तो है परमिशन। संस्थेचे सचिव डॉक्टर गोसावी सर, ज्येष्ठ मार्गदर्शक आणि खरंच त्यांच्या कार्याला मी
सलाम करते, कारण एवढं अविरत काम करत राहणं आणि ह्या वयापर्यंत त्या एनर्जीने आपल्यामध्ये सहभागी होऊन आपल्याला आशीर्वाद देणं, आपल्याला प्रोत्साहन देणं, मला वाटतं ग्रेट पर्सनॅलिटीज असं ग्रेट काम करत असतात न थकता. त्यातलं उदाहरण आपण माननीय गोसावी सरांच्या माध्यमातून बघतो आहोत. सो आय रिअली ॲप्रिशिएट सर आपलं काम. प्राचार्य डॉक्टर राम कुलकर्णीजी, प्राचार्य डॉक्टर VN सूर्यवंशी, डॉक्टर MD देशपांडे, डॉक्टर प्रणव कुमार रत्नपारखी, डॉक्टर प्रशांतजी देशपांडे, प्राध्यापक हरेशजी खैरनार, प्राध्यापक कुणाल वाघ, प्राध्यापक सुनील बच्छाव सर, सर्वच शिक्षक, माझ्यासमोर उपस्थित सर्व स्टुडंट्स, आणि जे काय बोलावं आता मला, कारण इथे आल्या आल्या मला ते पार्लमेंटचं कामकाज बघायला मिळालं. माझ्या आवडीचं हे चालू होतं आणि मध्येच तुम्ही बंद केलं असं मला वाटलं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल all my heartiest congratulations to my best wishes to the college and Gokhale Education Society on completion for about 98 years, so coming to the century. So really a great historical educational, this Gokhale Education Society has been contributing not only to the progress of Maharashtra, but I must say to the whole of India since last 98 years, and which is a truly commendable job. And I pray for all the success for future endeavors of Gokhale Education Society, and I hope it will create the best talent which will fulfill the vision of India as a Vishwaguru in the world as envisioned by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. My dear students, you are the pillars of future India, a democratic India, and I must say the mother of democracy. And I appreciate an initiative by the Department of Political Science of your college, which has organized a working debate through mock parliament on a very important subject, including various bills. For example, the Population Regulation Act and Janasankhya Avrodhaka to 2020 bill. So friends, this is a training which is very important for any citizen of India, of our country, who believes in democracy. I hope that such initiative will be organized more frequently by our institute, which will help in spreading an awareness about the hard work put up by our forefathers in building this democracy in our country and building our nation too. So this is why India is an epitome of democracy in the whole world. Our Honorable Prime Minister has always believed in youth, Yuva Shakti, and has always believed in your dreams and its power. So my appeal to all my friends to come forward, work for our nation, and to take to its highest glory. मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज की युवा शक्ति भारत को सक्षम बनाने के लिए आगे बढ़े, और जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं ये अवेयरनेस, इतना डेटाबेस बोलना, शायद मुझे ये ट्रेनिंग पहले मिलता तो मुझे भी अच्छा और लगता कि कितना मिनट्स में काम करना पड़ता है. इन बच्चों ने जो मेहनत की है, सो बच्चों को भी अंदाज़ा आया होगा कि पार्लियामेंट में जाने से पहले कितना पढ़ाई करना पड़ता है. सो इट्स नॉट दैट इंडिया नाउ कि चलो मंत्री बन गए, MP बन गए. नो,
अभी ये नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है और प्राइम मिनिस्टर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ आवर एमपीज एंड ऑल ऑफ आवर मिनिस्टर्स कि देश की सेवा पे, देश की समर्पण के लिए काम करना है। सो मुझे ये बच्चे शायद आज ज़्यादा समझ पाएंगे अच्छा, और मैं विपक्ष की भूमिका को निभाने वाले सक्षम कैंडिडेट्स को भी बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सब्जेक्ट रखा है, और ये जो है जो लाइव आपने देखा, ये हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं और अच्छा लगता है, क्योंकि देखो ये डेमोक्रेसी हमारी बनी है तो दोनों को मौका मिलता है। ऐसे नहीं होता है कि कोई भी बिल किसी मंत्री ने लाए हैं और अध्यक्ष जी हमें पास करने के मौके देते, नेवर नेवर नेवर। अब विपक्ष को भी म्हणजे विरुद्ध पक्षाला पण एक टाईम अलॉट होतो, त्यांच्या टायमिंगमध्ये त्यांनी त्यांचं बिलवर बोलायचं आहे, त्यांना विरोध करायचा आहे, त्यांना सपोर्ट करायचा आहे, याच्यावर ते बोलू शकतात, त्यांचे मतं मांडू शकतात। तिथे तुम्हाला फ्री डिस्कशन असतं। आणि तुम्ही हिस्ट्री बघितली असेल तर ह्या वेळेसच्या लोकसभेमध्ये सगळ्यात जास्त कामकाज झालं, म्हणजे रात्री 12-12, 1-1 वाजेपर्यंत पार्लमेंट सेशन चाललं। आमच्या दोन्ही त्यामधल्या खासदारांनी त्याच्यात सहभाग नोंदवला आणि मला वाटतं ही खरंच लोकशाहीची चांगली एक उदाहरण आहे की रात्रीपर्यंत कामकाज करून आपलं मत मांडलं जातं आणि त्यानंतर ते बिल पास होतं। बिल पास होत असताना ऑब्जेक्शन आलं तर डिव्हिजन मागता येतं आणि मग त्याच्यामधनं त्या बिलला सपोर्ट होतो, विरोध होतो। मला वाटतं हे शिक्षण प्रत्येक स्टुडंटला खरंच गरजेचं आहे की ॲटलिस्ट आपली पार्लमेंटची काय व्यवस्था आहे आणि त्या व्यवस्थेतनं कसं नुसतं लोकप्रतिनिधी निवडून देणं आणि त्यांनी काय काम करणं हे मला वाटतं पुढच्या पिढीला चांगलं जागरूकतेने कळतंय, त्याचा मला खूप आनंद आहे। आणि आपल्या या इन्स्टिट्यूटला मी खास करून अभिनंदन करेल, कारण नेहमीच 98 पासून तुम्ही वर्षापासून इतकं मोठं काम करत आहेत आणि 1918 मध्ये प्रिन्सिपल टी.ए. कुलकर्णी यांच्या योगदानातून गोखले एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना झाली। म्हणजे बघा किती वर्षापासून हे अविरत काम चालू आहे आणि आता सोसायटीला 100 वर्ष पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत। तर नाशिक, मुंबई, ठाणे, पालघर या भागामध्ये जवळपास 140 पेक्षा जास्त संस्थांच्या माध्यमातून जवळपास 1.5 लाख विद्यार्थी, खूप मोठा आकडा आहे, म्हणजे बघा 1.5 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, हे आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे। एकीकडे जेव्हा समृद्ध भारत, सक्षम भारत म्हणत असताना एज्युकेशनचं एवढं मोठं काम उभं करणं हे नक्कीच भारताच्या या विकासामध्ये मोठं योगदान असं मी नक्की समजते। आणि आपल्या सुरुवातीला जेव्हा 90 विद्यार्थ्यांपासून आपली सुरू झालेली हे महाविद्यालयाचा हा शैक्षणिक प्रवास आणि बघता बघता आज आपले एवढे विद्यार्थी वाढत चालले आणि आज आपल्या इथल्या मला वाटतं आज 3,000 विद्यार्थी आहेत। किती? 5,500। बघा माझ्याकडचा आकडा थोडा अपडेटेड नव्हता, 5,500 विद्यार्थी। मला वाटतं खूप मोठा प्रवास आहे आणि नेहमीच आपण या शिक्षणामधनं विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता, व्यावसायिक क्षमता, त्याबरोबरच सामाजिक असेल, सांस्कृतिक असेल किंवा अगदी भावनिक संवेदनशीलतासुद्धा तुम्ही विकसित करून घेण्यासाठी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जबाबदार नागरिक निर्माण करणं हे आपल्या महाविद्यालयाचं ध्येय आहे। मला वाटतं आजच्या युगामध्ये हे फार गरजेचं आहे। आम्ही एज्युकेशनकडे फक्त एका म्हणजे नुसतं नोकरी मिळावी ह्या हेतूने आपण बघू नये, तर आपल्याला द्यायचं आहे, आपल्याला भारताला म्हणजे भविष्य, भारत देश का भविष्य पाना है। सो नौकरी पाना हमारा मकसद नहीं है, तो भारत का भविष्य आणि त्या भविष्यासाठी आपण खूप काही काम करू शकतो। मी फक्त एक छोटंसं उदाहरण देईल आणि मग मी माझं भाषण संपवते। आपल्याकडे बघा म्हणजे सोल्जर्स तर जीवाची पर्वा न करता आपल्या कामामध्ये दिवसरात्र मायनस टेम्परेचरला जाऊन, बॉर्डरला जाऊन काम करत असतात आणि ते समर्पित असतात। निर्णय आधीच घेतलेला असतो त्यांनी की आम्हाला देशाची सेवा करायची आहे। ते तेवढे कमिटेड असतात की त्यांना त्याच्यापुढे काही परिवार वगैरे काही नसतं, ते त्या कमिटमेंटने काम करत असतात। परंतु त्याचबरोबर इतरही असे अनेक व्यवस्था आहेत की ज्याच्यामधनं सुद्धा अशीच भारत मातेची सेवा करता येते आणि याचे खूप उदाहरण आहे, म्हणजे खूप उदाहरण आहे। त्यातलं मी फक्त एक उदाहरण देईल की जे आपल्या भारतातलं आहे। जेव्हा सुनामीचं आपल्याला आठवत असेल, सुनामीचं संकट आलं होतं, तर आपले काही लाईट हाऊस आहेत की जे
समुद्रकिनारी त्या बोटींना येणाऱ्या शिप्सला गाईड करतात, मार्ग दाखवतात, दिशा दाखवतात. तर हा आमच्याच आमच्या लीडरनी सांगितलेला अनुभव आहे. तर एक लाईट हाऊस होतं की जिथे पोहोचण्यासाठी थोडं कर्मचाऱ्यांना, तिथल्या अधिकाऱ्यांना पोहोचण्यासाठी खूप वेळ लागत होता किंवा वेळ मध्ये होतं ते, आणि तेवढंच बाहेर यायला पण त्यांना जास्त वेळ लागत होता. तर जेव्हा सुनामी येणार असं जेव्हा त्यांना अलर्ट मिळालं, तर तिथे त्या कर्मचाऱ्यांना कळवलं, अधिकाऱ्यांना कळवलं की तुम्ही आता अशा परिस्थितीत आहात की तुम्हाला तिथनं सोडावं लागतं आहे आणि तुम्ही निघून या परत, आणि कधीही काही संकट येईल आणि तुमचा जीव धोक्यात आहे. आणि तिथली परिस्थिती बघता त्यांच्या ऑफिशियल कनेक्शनमध्ये बरेचसे शिप होते किंवा त्यांना ती दिशा दाखवायची होती. त्या कामामध्ये ते सगळं त्यांचं डिपार्टमेंट काम करत होतं. आणि मग त्यावेळेला सगळ्यांनी एक निर्णय घेतला, तिथली जेवढी पण मंडळी होती तर त्यांनी सांगितलं की सुनामी आली म्हणून काय झालं, पण आम्ही आज जर इथनं आमचं ऑफिस सोडलं तर येणारे अनेक असे शिप आहेत की ज्यांची दिशा भरकटली तर आमचं वैयक्तिक नाही, आमच्या देशाचं नुकसान होणार आहे. आज कदाचित आमचा जीव जाऊ शकतो, पण आमच्या केलेल्या किंवा आम्ही न काम केल्यामुळे आमच्या देशाला खूप वर्षापर्यंत याचा फटका बसू शकतो. आणि आमचा असा संदेश जाईल की हे कामावरून पळून गेले आणि याच्यामध्ये आमचं कुठलं समाधान आम्हाला मिळणार आहे. तर बघा, त्या क्षणाला सुद्धा त्यांनी त्यांची पर्वा केली नाही. त्यांनी सांगितलं की येणारे जे शिप आहेत त्यांची दिशा हे होऊ नये, ती लोक संकटात जाऊ नये, आमच्याबरोबर त्यांचाही जीव महत्त्वाचा आहे. आणि असे जर शिप येणारे असतील तर त्यांना आमच्या वाचून तिथे सांगणारं कोणी नसलं तर मला वाटतं याचं नुकसान त्यांच्याही देशाला होईल आणि आमच्याही देशाला होईल, याचे परिणाम भविष्यात जास्त होतील. तर त्यांनी निर्णय घेतला की आम्ही इथनं कोणीच जाणार नाही, जे होईल ते होईल, परंतु आम्हाला आमचं काम शेवटपर्यंत या देशासाठी, या सेवेसाठी आम्ही समर्पित आहोत, असा निरोप त्यांनी हेड ऑफिसला दिला. आणि दुर्दैव आपलं की सुनामी आली आणि याच्यात आपले सगळे ते कर्मचारी, अधिकारी शहीद, मी म्हणेल शहीदच झाले आपल्यासाठी. आणि आजही तिथे ते त्यांच्या आठवणी स्मृतिप्रित्यर्थ जाऊन आपण तिथे श्रद्धांजली नमन अर्पण करतो. तर मला वाटतं बघा, हे एक उदाहरण आपल्याला असं दर्शवतं की मनाने ठरवलं ना तर नॉट नेसेसरी की तिकडे जाऊनच आपण इथून सुद्धा आपल्या देशाप्रती, देशाच्या सक्षमतेसाठी, देशाच्या विकासासाठी खूप खूप काही करू शकतो. हा जो अवेअरनेस आहे आता मुलांमध्ये मी बघितला, हा असाच अवेअरनेस आपण जर नेट सर्च केलं तर अनेक अशा योजना आहेत. तर त्या योजनांच्या माध्यमातून तुम्ही एखाद्या सिनियर सिटीजनला किंवा महिलांना किंवा ज्या लोकांसाठी आहे त्यांच्यासाठी तुम्ही कदाचित एखादा दिवस, एखादा वेळ जरी दिला तर त्यांच्या लाईफमध्ये तो खूप मोठा चेंज होऊ शकतो. आणि त्यांच्या माध्यमातून, त्यांच्याकडून, तुमच्याकडून त्यांना मदत मिळाल्यामुळे हीच आपली सक्षमता वाढणार आहे. कोणाचा रोजगार सुरू होईल, कोणाला माहिती नसते की ह्यासाठी हे स्वनिधी योजनासारखा उपक्रम आहे की ज्याच्यामध्ये युवकांना एक छोट्या अमाऊंटचं कर्ज मिळू शकतं, मुद्रा लोन आहे, अशा अनेक योजना आहेत की ज्याच्यातनं तुम्ही मदत करू शकता. हा अवेअरनेसच्या माध्यमातून तुम्ही तुमची सोशल जबाबदारी, ॲक्टिव्हिटी करू शकतात. मला वाटतं ही खूप काळाची गरज आहे. आणि मी आज आपल्या इन्स्टिट्यूटचे आभार मानत असताना समोर बसलेल्या माझ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांकडनं ही नक्कीच अपेक्षा व्यक्त करते की आपणही याच्यामध्ये आपला वेळ आपल्या परिवाराला आणि आपल्या सोशल ॲक्टिव्हिटीजमधनं मदत करा. नुसतं तिकडे जाऊन मदत करणं असं नाही, तर इथे राहूनही तुम्ही तेवढंच चांगलं काम, मदत करू शकता. आणि मी तुमच्याकडे नक्कीच त्या अपेक्षेने बघते. मी तुमच्या या टीमला आमंत्रित पण करते की अजून पार्लमेंटची व्हिजिट सुरू नाही झाली आहे, पण जशी सुरू होईल, बिकॉज ऑफ कोरोना अजून ते आहेत सूचित की अजून व्हिजिट नाही, परंतु लवकरच ते ओपन झाल्यावर मी आमंत्रित करेल की आपण खरं पार्लमेंट बघायला या आणि त्याची व्यवस्था मी नक्कीच तुम्हाला त्याची मदत करेल. आणि पंतप्रधान संग्रहालय आहे ते सुद्धा बघितलं पाहिजे. नवीन नवीन गोष्टी आहेत, राष्ट्रपती भवन, या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की ज्या मुलांनी आज बघितल्या तर काय आहे आपलं कल्चर आणि कसं आपण आपला देश चालवत असताना जे कायदे बनतात ते कायदे बनवणाऱ्यांचं कसं काय कामकाज चालतं. तर मला वाटतं ही पण बघणं खूप गरजेचं आहे. खूप एज्युकेशनवर आपण भर देत आहोत, आपण काम करत आहोत. आणि मी नक्कीच एवढं म्हणेल की शिक्षक के बगैर, शिक्षकांना सुद्धा खूपच आपण गुरुस्थानी मानतो, तर शिक्षक के बगैर आप
सभ्य और समृद्ध समाज की भी कल्पना नहीं कर सकते। और ये जारी रहे ये शिक्षा, यह ज़रूरी नहीं है कि उजाला चिरागों से ही हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये उजाला चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। शिक्षा इज एजुकेशन। सो श्री हरिवंश राय बच्चनजींच्या मी एका पंक्तीने माझं भाषण संपवते की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो प्लीज़ कीप इट अप एंड ऑल माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भविष्य में नासिक ज़िले में और अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे, इस विश्वास के साथ मैं बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कोटि कोटि आभार माननीय मंत्री महोदया आपका। On behalf of Gokhale Education Society, we wish you good health and a bright and successful tenure. Thank you for your invitation to see the Parliament building and of course the magnificent Rashtrapati Bhavan. As the curtains come down on the celebration of Mock Parliament Program 2022 during the centennial period of our Gokhale HPT Arts and our YK Science College, Nasik, I stand here to propose the vote of thanks. Firstly, I would like to thank our chief guest, Honorable Union Minister of State for Health and Family Welfare, the Government of India, Madam Dr. Bharati Pawar, for graciously accepting our invitation and also gracing this program with her august presence. Also, I express our gratitude to the President of today's program, Honorable Sir Dr. M.S. Gosavi, Secretary and Director General of Gokhale Education Society, Dr. Sir Ram Kulkarni, the Zonal Secretary for Gokhale Education Society and Principal of BYK College, Nasik, to all the various office bearers and management staff of HPT Arts and our YK Science College, various authorities in Gokhale Education Society, the 5 alumni present here today, and all the students and volunteers for their hard work for making this program a great success. Thanks to all those who have contributed to make this program directly and indirectly successful. Thank you.